Okay, so welcome everyone. This is the second in the series of IMF online courses. Um, I am Wing Commander Chaudhary. I am chairman of the Mountaineering Steering Committee, and I'm helping conduct these online courses. We had the first one last week, which was by Devabrata Mukherjee and Ranbir Negi. Uh, this time we have a completely different topic. The topic is on. স্যার কেন গো আরো কারো খারাপ হয়েছে I would request all participants to be on mute. And first, let me introduce Ashutosh Mishra, who is today's speaker. Ashutosh, those of you who do not know him, is a ardent explorer of the Himalayas. For the last 15 years, he has been exploring various passes, routes in the Himalayas, and he has won several awards. He's also a filmmaker. He has won many awards at the IMF Film Festival. Besides, he is also well known as as somebody who does fantastic Google Earth mappings, and we requested him if he could come and speak to our participants about how to use Google Earth for navigation. So before I'm quite sure a lot of people have already joined. There are a few more, 61 people I can see, and some 5-6 people have joined but are waiting in the meeting room. We will get them all on board now. Again, requesting all participants to be on mute except for the speaker. Thank you very much. Over to you, Ashutosh. Thank you, Chaudhary Sahab. Thanks a lot for the time and the opportunity for this presentation. First, let me begin with a little bit of introduction about myself. My name is Ashutosh. My prime profession is management consulting, for which I earn most of my revenue. But about 10 years back, I thought combining my passion for exploratory expeditions into consulting, and nowadays we do a fair amount of outdoor-based leadership as well. As I mentioned earlier, prime focus has been to explore undocumented parts of the Himalayas. So that's what actually pushed me and my team into looking for ways and means of mapping out areas which have not been visited or not talked about much. So that's how we picked up some of the skills on the way. The learning process is still on. I'm looking forward to this session also as a good session for learning, because sometimes answering questions itself throws new doors of learning open to anyone. So उस आशा के साथ आज का ये workshop हम चालू कर रहे हैं. This is the second in the IMF online courses. This will be for 2 hours, and part of that time I have allocated for question and answer also. So let's quickly get on to the agenda, the introduction and why are we here. This I will take about 5 minutes. Then we'll get quickly into something called 8 steps for e-navigation. Then I will move into stepwise details, which might take some time. I will try to do some real life working here on the screen, because a lot of this can be done on the screen itself. So wo stepwise detail वैसे करेंगे. Then a short bit on references and resources to be used for this process.
and lastly some bit of question and answer. इससे जल्दी अगर खत्म हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात, अदरवाइज अपने आप को थोड़ा लिमिट में रखने के लिए टाइम प्लान ये है. So first question, why navigation with Google Earth? Why not with maps? Maps that are available. इसके दो क्विक आंसर हैं. पहली बात तो जिस एरिया में एक्सप्लोरेटरी एक्सपीडिशन हम लोग करते हैं, the places where we do exploratory expedition are mostly areas near the border, because inside the country वाला एरिया में केवल नंदा देवी सैंक्चुरी एक एरिया है जो डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर है. बाकी सारे जगह पे तो आप जा सकते हो, उसके मैप वगैरह भी मिल जाता है. बट फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू द बारावटी एरिया और यू वांट टू गेट टू द नेलोंग एरिया or any such, or Niti Pass area or Chorhoti Pass area, or similarly for the bordering areas of Kinnaur, ये सब एरिया में जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो मैप्स की काफी दिक्कत महसूस होती है, because most of these places are covered under defense series maps and defense series maps are hard to get. SOI में बहुत जल्दी मिलता नहीं. So Google Earth based mapping and navigation is superior to published paper maps. That's what we have experienced over a period of time. And definitely it becomes an aid for exploratory expeditions, specifically in the Indian Himalayas. Because अगर आप यूरोप में एक्सप्लोर कर रहे हैं या यूएस में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनके पास बहुत ही एक्सटेंसिव टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं. बट इंडियन हिमालयस का ऐसे रेडीमेड ओवर द काउंटर टोपोग्राफिक मैप्स बहुत आसानी से मिलता नहीं. पहली बात क्यों, why it is superior is because it provides image details over and over the printed map, and provides you a feel of the place. So something like in this picture you will see a contrast between the two types of maps. So on the left hand side, large portion of this picture is the Swiss Foundation of Alpine Research Garhwal East map, उसका कुछ पोर्शन है, और राइट साइड में छोटा सा लाइन में आपको दिख रहा है गूगल अर्थ के ऊपर ग्रिड लाइंस ड्रॉ किए गए हैं. सो ऑब्वियसली द फीचर्स का जो डिटेल्स आपको गूगल अर्थ में मिलता है, द काइंड ऑफ डिटेल्स दैट यू गेट इन गूगल अर्थ यू प्रोबेबली कांट गेट इन अ पेपर मैप, बिकॉज समबडी हैज ड्रॉन द पेपर मैप, हाथ में बनाया किसी ने. जबकि गूगल मैप में आपको डायरेक्ट इमेज मिल रहा है जो ऊपर से दिखता है. सो पहली फायदा तो ये है, एक नौसिखिया आदमी भी थोड़ा विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ ए प्रॉब्लम कैन गेट एन आइडिया कि किस जगह पे वो है या किस जगह पे वो जाना चाहता है. एंड दिस इज हाउ अ फुल मैप विल लुक लाइक. फॉर टुडेज डिस्कशन आई हैव टेकन द रलामधुरा एरिया, बिकॉज रलामगढ़ और रलामधुरा एरिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं, मैंने भी कभी गया नहीं, सुना तो काफी है, बट कभी जाना है तो आई थॉट इस प्रोग्राम के लिए इस एरिया को थोड़ा छानबीन करते हैं. सो आफ्टर सम इनिशियल वर्क आई हैव जस्ट प्लॉटेड सम ऑफ द वे पॉइंट्स एंड द फीचर्स, and if I were to do an expedition, probably I will carry one such map with me. Probably it will be more detailed. ये अभी करीबन 6 किलोमीटर वाला स्केल में दिखाई दे रहा है. I can go down till 500 meters. That much of detail can be obtained in such a map. So और अगर मैं उसको contour में देखना चाहूंगा तो this is how I can get a contour map. ये मैप को लेकर के मैं जा सकता हूँ जिसमें कि आपको slopes और gradients और ridges और वैलीज का बहुत बेहतरीन डिटेल दिखता है. सो जो भी नेविगेशन टीम है उसके लिए काम काफी आसान हो जाता है. जैसे सो जस्ट टू मूव ऑन, ऑल्सो दूसरा एडवांटेज क्या है कि रीसेंट टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, बिकॉज ये सारे जो इमेजेस हैं दे गेट अपडेटेड ऑलमोस्ट एवरी 3 to 4 years. इफ वी टॉक अबाउट इंडियन हिमालयस देन 3-4 साल में एक बार नया इमेज तो आ ही जाता है. So if there is any man-made change or if there is any weather-related change on the topography, that also becomes visible. मान लीजिए कहीं पे बड़ा लैंडस्लाइड होकर के रास्ता टूट गया है, अगर recent imagery है तो वो भी आपको दिख जाएगा, जो कि शायद मैप में नहीं दिखेगा, because many of the defense series maps etc. जो पब्लिक को मिलेंगे वो बहुत ज्यादा इतना अपडेटेड होते नहीं है. They got created at one point in time, उसके बाद उसको अपडेट करना पड़ता है. And because it is an imagery based map, I can get a very high resolution. I can even look at पत्थर जो गिरा हुआ है, बड़ा सा कोई रॉक पड़ा हुआ है तो वो भी दिख जाएगा, क्योंकि जितना रेजोल्यूशन में आपको गूगल अर्थ में इमेज दिखता है उतना ही रेजोल्यूशन में आप मैप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और साथ में लेकर भी जा सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैप को थोड़ा सा फेंट कर दिया हूँ,
जिसके वजह से कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी है, तो नीचे का गूगल अर्थ का इमेज भी दिख रहा है और ऊपर मैप के डिटेल्स भी दिख रहे हैं, तो आपको फर्क पता चल रहा है। क्योंकि मैप में अगर आप दिखेंगे जहाँ पे 4865 लिखा हुआ है, जहाँ पे यांगचार ग्लेशियर बोल के एरिया दिखा रहे हैं हम, वहां पे 3 कंटूर लाइन्स हैं। लेकिन अगर मैं इमेज ऊपर का मैप हटा देता हूँ और इसको प्योर गूगल अर्थ इमेज में लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि उसमें कितने सारे क्रेविसेस दिख रहे हैं, माइनर डिटेल्स दिख रहे हैं, कहीं से पानी जा रहा है वो दिख रहा है. So those things you will not get in a printed map. So that is the advantage of creating a Google Earth based map. एलिवेशन डेटा तीसरा आ सकता है, जो कि आपको प्लेन पेपर मैप में मिलेगा नहीं, और एलिवेशन डेटा के साथ और आप अपना क्लाइंब्स और डिसेंट्स का पॉसिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं. सो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बट इन मोस्टली 80% ऑफ द केसेस यू विल गेट इट राइट, कि अगर कोई डिफिकल्ट जगह है तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिफिकल्ट है. और अगर मैं थोड़ा सा गूगल अर्थ का व्यू चेंज कर देता हूँ तो बिल्कुल 2 डायमेंशनल मैप में जो फील आता है उससे बेहतर फील आता है, थोड़ा 3D टाइप का फील आता है, और डेप्थ दिखाता है मैप में. और लास्ट में सनलाइट सिमुलेशन भी आप कर सकते हैं, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन वी आर डूइंग डिफिकल्ट एक्सप्लोरेटरी एक्सपेडिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेली का कैंप साइट प्लानिंग बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि अगर आप चाहें तो वहां पे 2 दिन रुक जाएं, कैंप रोक के आगे का रास्ता रेकी करें फिर दूसरा कैंप लगाएं. मोस्टली ये डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जाते हैं, मेनी पीपल हु कम विद अस यूजुअली हैव अ लिमिटेड हॉलीडे, 15 दिन का छुट्टी है, उसी के अंदर आप, so you cannot afford to lose days because of bad campsites, and one of the key things I find is that what time does the camp get up in the morning. If the camp is able to get up in the morning, then you will be able to do a good day. अगर आपका 5 किलोमीटर का क्लाइंब का प्लान है और एक्सप्लोरेशन का प्लान है तो कर सकते हैं आप. अगर आप कुछ चालू करते करते 8 बज गया तो फिर मुश्किल है. और कैंप चालू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे सनलाइट कितने बजे पड़ेगा. तो अगर आप 6000 मीटर में कैंप साइट प्लान कर रहे हैं और वैली के भीतर है, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर प्लान करने से काफी फर्क पड़ जाता है. तो मुझे चाहिए कि सुबह 6 बजे तक मेरे कैंप के ऊपर सनलाइट हो, स्पेशली अगर मैं 5000 मीटर के आसपास का रीजन में हूँ. और ये प्लानिंग सनलाइट सिमुलेशन से बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है, कि कहाँ पे धूप पड़ेगा ये भी आप जान सकते हो, और उस पर्टिकुलर डे में कहाँ पे धूप पड़ेगा ये भी आप जान सकते हो. So these are some of the advantages that we take off. So this is an example. For example, ये 16 जून 2020 सुबह 5:04 का सनलाइट सिमुलेशन है रलामदोरा एरिया में. सो आपको दिख रहा है कि सुबह 5 बजे किस किस एरिया में धूप हल्का सा पड़ना चालू हुआ है. फिर मैं 6:15 का धूप सनलाइट सिमुलेशन देखूं तो और थोड़ा धूप तेज हो गया है और थोड़ा नीचे नीचे एरिया को धूप चला गया है. सो दिस इज सनलाइट सिमुलेशन विच हेल्प्स मी टू प्लान where should I put my campsite. Minor adjustments many times makes a lot of difference. और फिर ये रात का फोटो, तो आप देख सकते हैं कि रिज के दूसरे साइड में सनलाइट चला गया, ईस्ट के बजाय वेस्ट साइड में चला गया. So these are also an important check that we do before we finalize our navigation plan. And finally, data transfer to handheld GPS for accurate navigational guidance on site. ये जितने सारे screens आपने देखे, अगर आप चाहें, this exact screen can get transferred to your GPS through a method called custom map. But GPS का केवल प्रॉब्लम इतना है कि इतना सारा ग्राफिक्स ट्रांसफर करने के बाद भी वो स्क्रीन छोटा सा होता है, 4 इंचेस बाय 2 इंचेस 1.5 इंचेस का होता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन जैसे बहुत क्लियर से दिखता नहीं है. सो फॉर दैट रीजन वी टेक द GPS फॉर गाइडिंग आवर राउट, बट टू हैव अ लुक एट द एंटायर एरिया वी कैरी अ प्रिंटेड मैप of the Google navigation plan that has been made. क्योंकि प्रिंटेड मैप में एक व्यू में पूरा एरिया दिख जाएगा, और डे वाइज प्रिंटेड मैप निकालते हैं कि जिस दिन में जितना रास्ता तय करना है उतने ही एरिया का मैप बना के लेते हैं. So that's why we need to learn this skill, especially if we are wanting to do exploration. So to do this, what is required? पहला चीज, clarity on the expedition concept and the target area. तो अगर मुझे चुनसा खागा पास करना है तो आई हैव टू रीड अप द एंटायर थिंग अबाउट चुनसा खागा. सो व्हेन आई रेड अप चुनसा खागा, आई फाइंड दैट ओके, अगर आप किन्नौर साइड से आ रहे हैं तो आपको 3 दिन बर्फ में चलना पड़ेगा, और फिर उतरने के बाद फ्लैट लैंड मिल जाएगा. इस टाइप का डिस्क्रिप्शंस पहले गैदर करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली अगर अनजाने एरिया में आप जा रहे हैं, रेयरली डॉक्यूमेंटेड एरिया में अगर आप जा रहे हैं.
तो जितना भी रीडिंग मटेरियल है पहले तो वो आपके हाथ में होना चाहिए। आपको जितना इंफॉर्मेशन रीडिंग मटेरियल से मिल सकता है पहले वो गैदर करें। नेक्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर विद गूगल अर्थ प्रो। पहले गूगल अर्थ होता था, आजकल गूगल अर्थ प्रो सबको मिलता है विद इंटरनेट एक्सेस। अगर आपके पास 21 इंच या 27 इंच का स्क्रीन है तो और बेहतर है। इसका पर्पस मैं बताऊंगा कि जितना बड़ा स्क्रीन होगा आप उतना बढ़िया प्रिंटेड मैप बना पाएंगे। सो डिस्प्ले स्क्रीन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए बहुत छोटा सा स्क्रीन अगर करेंगे तो प्रिंटेड मैप बहुत अच्छा नहीं आएगा। So this is what is Google Earth. Many people, you just type Google Earth on internet and you will get to see the download screen. Similarly, so Google Earth is one important resource. उसके बाद आपके हाथ में एक प्रिंटेड मैप भी होना चाहिए, चाहे जितना पुराना हो, जितना भी डिटेल हो। मैप में जो डिटेल होता है वो कहीं पे नहीं होता, क्योंकि जो बंदा पहले मैप बनाया है उसने कुछ लेबर डाला है उसके अंदर। He has identified the features, he has visited that area, he has named the features. So मैप में पहले जितना डिटेल प्रिंटेड मैप में है, पहले मैं उसको गूगल अर्थ में ट्रांसफर करना चाहूंगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमें जाया नहीं करना। So डाउनलोडिंग द ओरिजिनल मैप फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप आसानी से पा सकते हैं इंडियन हिमालयस के लिए पर्टिकुलरली इज अ 1:250,000 स्केल का मैप। उससे भी ज्यादा बेहतर रिजोल्यूशन होता है डिफेंस सीरीज मैप्स में, जो कि 1:50,000 के होते हैं। बट डिफेंस सीरीज मैप्स एज आई सेड लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। अगर आपके पास परमिशन है तो probably सर्वे ऑफ इंडिया will also give you a defense series map of the required area. IMF also provides a lot of help in that manner. But आपके पास अगर वो inputs नहीं भी हैं तो भी आप एक 1:250,000 मैप तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। I will slowly cover that. So this is, for example, the Nanda Devi map of the Indian Himalayas, which is part of the US 502 Army map series. This map, so this is a 1:250,000 map. हम आगे को देखेंगे कि इस मैप को हम गूगल अर्थ में कैसे ले जाएंगे। That's the second step. But सबसे पहले मैप डाउनलोड करना जरूरी है। कहाँ से डाउनलोड करना है, that also I will mention at the end. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास बोल के एक जगह है, इंटरनेट पे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मैप लाइब्रेरी करके सर्च मारेंगे तो you will reach a place where you will have this extensive documentation of map of almost all the countries in the world. और उसमें इंडिया वाला पेज में US 502 सीरीज बोल के एक सीरीज है, जिसके अंदर आपको ये सारे मैप्स मिलेंगे जो आप अभी अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। सो मैप डाउनलोड हो गया, उसके बाद पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर कुछ आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। जैसे एप्पल कंप्यूटर है तो फोटोज होगा या फोटोशॉप होगा, या GIMP करके एक प्रोग्राम मिलता है। सो GIMP इज अ फ्रीली डाउनलोडेबल प्रोग्राम विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, विच इज लाइक ए फोटोशॉप। तो ये हम इसलिए चाहिए कि जब हम प्रिंटेड मैप प्रिंट करने जाएंगे या फिर हम जब मैप को भी गूगल अर्थ में लेकर के जाएंगे तो इन दोनों काम के लिए पिक्चर को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। जैसे वो मैप वाला पिक्चर है उसको भी थोड़ा कटाई छटाई करना पड़ता है। सो पिक्चर को काटने के लिए और पिक्चर को स्टिच करने के लिए सॉफ्टवेयर आपके पास भी होना चाहिए। सो स्टिचिंग सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ इज कॉल्ड हगिन। हगिन इज अगेन ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये एप्पल प्लेटफॉर्म में भी चलता है और लाइनक्स विंडोज प्लेटफॉर्म में भी चलता है। बट जब हम मैप क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग के लिए तो मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स को हम स्टिच करके प्रिंट करते हैं, तो वो स्टिचिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। देन फाइनली द जीपीएस टू लोड द कस्टम मैप डेटा। सो आपके पास अगर जीपीएस है तो जीपीएस के साथ नॉर्मली गार्मिन जीपीएस के साथ एक ये सॉफ्टवेयर आता है गार्मिन बेस कैंप बोल के। तो कंप्यूटर के साथ जीपीएस बात करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सो गार्मिन के केस में दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड गार्मिन बेस कैंप। और अगर कोई दूसरा जीपीएस आप यूज कर रहे हैं तो उसका भी अपना कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू द कंप्यूटर डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द गार्मिन टू दैट जीपीएस डेटा। वैसे भी डायरेक्टली जीपीएस का डायरेक्टरी में आप अपना फाइल डाल सकते हैं बिना ये सॉफ्टवेयर का भी। देन प्रिंटिंग फैसिलिटी। So now let's quickly come over to the 8 steps for creating this situation. ये जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई इसको करना कैसे है। So सबसे पहले तो डाउनलोड एंड ऑर्गेनाइज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। डेटा बोले तो मैप, गूगल अर्थ, हगिन, ये सारे प्रोग्राम लोड हो जाना चाहिए आपके डेस्कटॉप में।
So that's step number 1. Step number 2, if you are a new user of Google Earth, please be very comfortable with the Google Earth views and controls. कि Google Earth जब आप लोड करते हैं तो उसका व्यूज वगैरह क्या क्या पॉसिबल है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सेकंड स्टेप है, इसके बारे में जानकारी होना सेकंड स्टेप है. फिर थर्ड स्टेप है ओवरले द मैप ऑन टू द गूगल अर्थ. जो मैप आपने डाउनलोड किया है उसको लेकर के गूगल अर्थ में चिपकाना है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, सो दैट मैप बिकम्स लाइक ए चादर ऑन टॉप ऑफ द गूगल अर्थ. तो गूगल अर्थ के ऊपर जैसे आपने मैप का एक चादर बिछा दिया, उसी को ओवरले कहते हैं. सो ओवरले द मैप डेटा ऑन गूगल अर्थ. तो जब हम वो मैप को गूगल अर्थ के ऊपर बिछा दिए तो उसके बाद वी हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मैप में जो सारे डिटेल्स दिख रहे हैं अब हम उसको गूगल अर्थ में मार्क कर सकते हैं. जैसे कोई जगह है, कोई कैंप साइट है, कोई रिवर है, कोई पीक है, वो पीक का हाइट भी लिखा होगा टिपिकली मैप वगैरह में. सो वो सारा डेटा हम फिर मैप को एक बार उसके ऊपर चढ़ा के गूगल अर्थ के सरफेस के ऊपर हम मैप को चढ़ा देते हैं और उसको एक ट्रेसिंग पेपर के तरीके से यूज करते हैं मैप को. और जहां जहां मैप दिखा रहा है कि ये जगह यहाँ पे है तो वहां पे एक एक गूगल अर्थ वाली पिन्स लगा देते हैं. सो दैट बेसिकली गिव्स अस द जीपीएस नेविगेशन प्लान, जिसमें कि हम रूट मार्क करेंगे, जिसमें हम रिवर्स मार्क करेंगे, जिसमें हम माउंटेन्स और पिक्स मार्क करेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिक फीचर है वो मार्क करेंगे. सो ये सारा पार्ट जीपीएस नेविगेशन प्लान के अंदर आता है कि आपको क्या क्या लगता है कि मैप का कौन कौन सा डेटा आपके गूगल अर्थ मैप में जाना चाहिए. ये होने के बाद देन प्रिंट द हाई रेजोल्यूशन एक्सपेडिशन मैप. तो जितना आपका एरिया ऑफ एक्सपेडिशन है उसके लिए जितने भी मैप्स आपने बनाए हैं उसको प्रिंट करिए, ताकि एक प्रिंटेड मैप का एक डॉकेट आप अलग से रखें. और वो जो जीपीएस नेविगेशन प्लान आपने बनाया होगा उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप जीपीएस में ट्रांसफर करेंगे. सो जितना काम आपने गूगल अर्थ के ऊपर किया है अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, वो सारा का सारा सामान जो है जीपीएस के अंदर चला जाएगा. फिर 7वां स्टेप मैंने एक लिखा है कि ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन डेटा रिकॉर्ड के लिए क्या क्या केयर लेना पड़ता है, बिकॉज ऑफ वेरियस साइंटिफिक इश्यूज. इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स देन द एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड रन्स इनटू लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, जो कि हमने एक्सपीरियंस से सीखा है. सो दैट इज द 7th पॉइंट. एंड फाइनली पोस्ट एक्सपेडिशन रैप अप, क्योंकि एक बार आपने मैप बना के उस रास्ते में चल दिए तो अगले बार अगर आप जाना है तो उसके लिए तैयारी करके हम बंद करते हैं काम. सो इफ आई हैव गॉन थ्रू द चुनसकागा रूट, आई हैव मेड अ मैप फॉर दैट, वो सारा का एक्सपेडिशन हो गया. सो आफ्टर द एक्सपेडिशन इज ओवर आई वुड हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ हाउसकीपिंग टू मेक श्योर that next time I have to use this, then I don't have to get into too much of a problem. वो सीधा सीधा कंप्यूटर में डालना है, प्रिंट आउट लेना है, जीपीएस में डालना है और एक्सपेडिशन पे निकल जाना है. So those are the 8 steps for e-navigation. Now let's go one by one. So सबसे पहले download and organize the data resources. तो इसके अंदर 3 मेजर चीज आते हैं: maps of target area, global overlays on Google Earth, एंड रिसर्च मटेरियल फॉर टारगेटेड एक्सपेडिशन. जो मैंने आपको पहले बोला था कि अपने टारगेट एरिया के बारे में जानकारी रखना पहले बहुत जरूरी है. तो वो रिसर्च मटेरियल कहाँ से मिलेगा, दूसरा टारगेट एरिया का मैप कहाँ से मिलेगा, और तीसरा स्पेसिफिक मैप नहीं ग्लोबल ओवरलेज मिलते हैं. पूरे गूगल अर्थ के ऊपर एक चादर चढ़ा देता है वो, जैसे कि मैंने आपको कॉन्टूर मैप वाला दिखाया. तो गूगल मैप टेरेन बोल का एक कॉन्टूर प्लॉट है जिसको आप लगा दो तो पूरे गूगल अर्थ के ऊपर वो कॉन्टूर चढ़ा देता है. सिमिलरली बिंग मैप करके एक आता है माइक्रोसॉफ्ट का. आपको पता है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कॉम्पिटिटर हैं. तो बिंग मैप ओवरले अगर मैं लगा देता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो सिस्टम है उसके अंदर जो ग्लोब का इमेजरी है, जो पूरे अर्थ का जो इमेज है, उसका एक ऑल्टरनेटिव इमेजरी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से हम ले सकते हैं. मान लीजिए कि गूगल वाला जो मैप इमेज आपको दिखा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, कहीं पे धूप पड़ रहा है, डिटेल ठीक से नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम फिर बिंग मैप लोड कर देते हैं और देखते हैं कि वो वाला जगह का पिक्चर बिंग मैप पे शायद ठीक होगा. तो कई बार होता भी है, बिंग मैप का भी इमेजरी सही है. सो इसलिए ये 2 ग्लोबल ओवरले हम गूगल अर्थ के ऊपर चढ़ाते हैं जस्ट टू हेल्प आवर मैप मेकिंग. sorry, so going into a little bit of it, maps of the target area, जैसे मैंने आपको बताया, University of Texas Map Library is a very good place to go. यहाँ पे तो आपको नेपाल के 1:50,000 मैप्स भी मिल जाते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का जो मैप लाइब्रेरी है, अगर आप नेपाल एरिया में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नेपाल के काफी डिटेल्ड मैप्स यहाँ पे हैं.
और अगर आपको इंडियन हिमालय स्पेसिफिक मैप्स देखना है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक किया हुआ है और कई और भी जगहों से लिया हुआ है, तो pahad.in बोल के एक वेबसाइट है, तो उसका एक मैप पेज अलग से है। सो वो सारे लिंक्स भी मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो pahad.in का जो मैप वाला पेज है, उसके अंदर भी आपको कई सारे मैप्स मिल जाएंगे, मैप्स के डिटेल मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। अदरवाइज फाइनली सर्वे ऑफ इंडिया से आप मैप खरीद लें, प्रिंटेड मैप, और वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मैप लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे तो U502 सीरीज इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडियन हिमालयस। U502 इज अ यूएस आर्मी सीरीज। ये 1952 का डेटेड है, लेकिन ज्योग्राफिक फीचर के हिसाब से रीजनेबल डिटेल्स मिल जाता है। बहुत रिसेंट डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने ट्रेक रूट्स या फिर जिस एरिया में एक्चुअली ये मैप मेकर्स जाकर के बनाए हैं, उस एरिया के डिटेल्स, ये काफी हद तक ठीक ही रहता है। बट अगर आपके पास 1:50,000 वाला डिफेंस सीरीज मैप मिल रहा है, तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज दैट वुड हैव एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ डिटेल ओवर एंड अबव दिस। सिमिलरली ग्लोबल ओवरलेस की जब बात करें तो गूगल मैप टेरेन बोल के एक ओवरले है, जो कि पूरा दुनिया का काउंटर प्लॉट बना के देता है, पूरा दुनिया का। आप एक बार ये ओवरले चढ़ा दो तो गूगल अर्थ में वो बाकी इमेज नहीं दिखेंगे, खाली काउंटर प्लॉट ही काउंटर प्लॉट दिखेगा। सिमिलरली बिंग मैप अगर वो ओवरले चढ़ा दो गूगल अर्थ के ऊपर, तो गूगल वाले सारे इमेजरी उड़ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे इमेज लोड हो जाएंगे उसके ऊपर, पूरे दुनिया का। सो दीज आर आल्सो टू वेरी गुड लिंक्स टू हैव इन योर गूगल अर्थ प्रोग्राम। और रिसर्च मटेरियल की जो मैंने बात करी, उसके लिए भी pahad.in वेबसाइट एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, जिसमें कि 1800 सदी से लेकर के आज तक बहुत सारे हिमालय वगैरह को लेकर के डॉक्यूमेंट्स वहां पे हैं, चाहे वो एशियाटिक्स जर्नल का डॉक्यूमेंट हो, चाहे लिखा हुआ किताबें हो। pahad.in I find to be a very good web resource. Similarly, archives.org बोल के एक वेबसाइट है, there also you get lot of old books, so books which are written in 1860, 1850, 1830 like that. हिमालयन जर्नल है, इंडियन माउंटेनियर है। सो दिस आर इंडियन माउंटेनियर का तो ऑनलाइन साइट नहीं है, बट प्रिंटेड मिल जाता है। या फिर फिजिकल लाइब्रेरीज में जाएं, जैसे IMF हैज गॉट अ वेरी गुड लाइब्रेरी, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी हैज गॉट अ वेरी गुड लाइब्रेरी, या फिर वेरियस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो हैं, वहां पे भी शायद आपको ये पुराने जमाने की किताबें मिल जाएंगे, जिसमें हिमालय या हिमालयन एक्सपीडिशंस के बारे में लिखे होंगे। Coming to the next stage, which is familiarize yourself with Google Earth views and controls. तो इसमें जो मेन बात है कि जब आप Google Earth देखते हो तो एक स्क्रीन ऐसा दिखता है। You get to see a screen like this, where the image is there. लेफ्ट हैंड साइड में एक व्हाइट सा पोर्शन होता है जिसको हम साइड बार बोलते हैं। एकदम टॉप में कुछ ऐसे आपको वो सूरज बना हुआ है, घड़ी बना हुआ है, वो लाइन मार्किंग्स बने हुए हैं, लेटर बना हुआ है, ये दैट इज कॉल्ड द टूल बार। उसके थ्रू हम वेरियस डिटेल्स गूगल अर्थ के ऊपर डाल सकते हैं। और एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे मूवमेंट कंट्रोल सारे वहां पे हैं, कि आपको मैप को शिफ्ट करना है लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, घुमाना है, टेढ़ा करना है, सीधा करना है, वो सारे कंट्रोल्स राइट हैंड साइड में है। So I will just take some time, maybe we'll do some live demo of that. So browse left, right, up, down. तो आपका मैप लेफ्ट, राइट या अप डाउन, ऊपर नीचे जा सकता है। रोटेशन एंड टिल्ट फॉर 3D व्यू, जूम इन एंड जूम आउट, कितना डिटेल में आप अंदर देखना चाहते हैं या ऊपर चला जाना चाहते हैं। ग्राउंड लेवल व्यू, ये सारे कंट्रोल्स आपके राइट हैंड साइड में है। ब्राउज लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, रोटेशन एंड टिल्ट फॉर 3D व्यू, जूम इन, जूम आउट, ग्राउंड लेवल व्यू, ये सारे के सारे राइट हैंड साइड टॉप साइड में आपको कंट्रोल्स दिखेंगे। हिस्टोरिकल इमेजरी, मार्किंग वे पॉइंट्स एंड फीचर्स, ये सब ये ऊपर वाला एरिया में है। जब हम हिस्टोरिकल इमेजरी का व्यू ऑन कर देते हैं तो जो 6/2013 लिखा हुआ है वो वाला टूल वहां पे आ जाता है। और बाकी ऊपर जो बने हुए हैं उसमें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एरिया ड्रॉ कर सकते हो, पिन लगा सकते हो, ये सारे कंट्रोल्स ऊपर हैं। मेजर एंड कंफर्म डिस्टेंसेस एंड स्लोप्स, लेयर्स एंड फोल्डर्स, मेजर्स एंड डिस्टेंस, मेजर एंड कंफर्म डिस्टेंसेस एंड स्लोप्स, वो तो पाथ टूल में ऊपर से हो जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे। फोल्डर्स क्रिएट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप गूगल अर्थ में विभिन्न डिटेल भरना चालू करोगे, वो कहाँ पे जाके सेव हो रहा है ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए
ये जो माई प्लेसेस बोल के जो एरिया बना हुआ है ऊपर, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देना बेहतर होता है कि जो एक्सपेडिशन आप करने जा रहे हो उस एक्सपेडिशन के नाम पे एक फोल्डर क्रिएट कर दो, जो भी काम करो उसी के अंदर रहे। नहीं तो जैसे मेरा वाला स्क्रीन आप देखेंगे पता नहीं कितने सारे फोल्डर्स हैं, और कहाँ पे जाके अगर वो वे पॉइंट में कुछ बनाऊंगा, अगर किसी फोल्डर में घुस जाएगा उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है फिर। सो दैट्स व्हाई फोल्डर मेकिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग। और नीचे जो पोर्शन है इस बॉक्स में, उसमें लेयर्स आपको दिखेंगे। ये सारे लेयर्स को आप चेक करेंगे या अनचेक करेंगे तो वो डिटेल्स आपका गूगल अर्थ में आ जाएगा या आना बंद हो जाएगा। जैसे अभी इस पे टेरेन को चेक किया गया है, टेरेन को चेक किया गया है मतलब 3D व्यू दे रहा है वो। उसको अनचेक कर देंगे तो ये पूरा मैप 2D हो जाएगा, मैंने पेपर टाइप का हो जाएगा, उसमें डेप्थ नहीं दिखेगा। सिमिलरली रोड्स को इसमें टिक ऑन किया गया है, इसलिए रोड्स दिखा रहा है, येलो कलर का सारा रोड्स दिखा रहा है। उसको अगर अनचेक कर दूंगा तो वो सारे रोड गायब हो जाएंगे वहां से। सिमिलरली प्लेसेस, बॉर्डर्स एंड लेवल्स, ये सबको मैंने इसमें चेक कर रखा है तो वो दिखा रहे हैं। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो वो नहीं दिखाएगा, वो पूरा प्लेन इमेज हो जाएगा गूगल अर्थ के। तो ये कुछ बेसिक कंट्रोल्स हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कंट्रोल्स कैसे होता है। सो दिस इज योर गूगल एंड ये है आपका जूम टूल। तो मैं जूम कर रहा हूं तो ये जूम हो रहा है। तो मान लीजिए हम नेलोंग एरिया देखना चाहते हैं तो ये नेलोंग एरिया में आके जूम हो गया है। जो लाल रंग का बना हुआ है ये नेलोंग एरिया है। सो दैट इज द जूम टूल। इसको आप प्लस में करेंगे तो अंदर को जूम हो जाएगा, अगर ये माइनस करेंगे तो आपका कैमरा ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द जूम टूल। दिस इज द अप डाउन लेफ्ट राइट टूल। इसको आप एरो वाला की से भी कर सकते हैं, लेफ्ट डाउन अप राइट। और यहाँ पे नॉर्थ एडजस्ट करने के लिए एक एन बोल के लिखा हुआ है, इसको एन क्लिक कर देंगे तो ये मैप नॉर्थ ओरिएंटेड हो जाता है। सो दैट्स फॉर द बेसिक कंट्रोल। अगर इसको आप शिफ्ट प्रेस करके या ऑल्ट प्रेस करके एरो मार्क देंगे तो मैप ऐसे टिल्ट हो जाएगा। सो यहाँ हम बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं इसलिए वो 3D व्यू इतना बढ़िया से आ नहीं रहा है। बट अगर हम एकदम नीचे पोर्शन में चले जाएं, जूम कर लें और अब 3D व्यू करें तो आपको पूरा यहाँ पे वैली का डिटेल दिखेगा। ये मैं एक शिफ्ट और एरो प्रेस कर रहा हूँ एप्पल कीबोर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड में शायद ऑल्ट और एरो प्रेस करने से ये व्यू आता है। सो दिस इज कॉल्ड द टिल्ट व्यू। अब एक और चीज इसमें, ये जो आदमी बना हुआ है, इस आदमी को मैं उठा के अगर इस जगह पे रख दूं तो ये मुझे इस जगह का ग्राउंड लेवल व्यू दिखाएगा कि अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको कैसे दिखेगा। सो यहाँ पे आदमी रिज के ऊपर चढ़ गया तो उसका व्यू कैसे बदलेगा। सो दिस इज ऑल्सो ए इंटरेस्टिंग व्यू टू हैव टू अंडरस्टैंड द एरिया दैट यू आर ट्राइंग टू एग्जामिन। सो दिस इज अबाउट ग्राउंड लेवल व्यू। एग्जिट ग्राउंड लेवल व्यू करेंगे तो बाहर चले जाएंगे, फिर जूम आउट कर लिया। सो दोज आर दी कंट्रोल्स for movement of the screen. Then comes your so this is the गंगोत्री वैली। ये आपका गंगोत्री वाला रास्ता है भैरव घाटी से। आप देख पा रहे हो कि ये आपका टेम्पल एरिया है भैरव घाटी, और ये गाड़ी और ये तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए जगह क्रिएट करना चाहता हूं कि आई वांट टू मार्क कि ये जगह का नाम है भैरव घाटी, तो ये ऊपर में जो पिन वाला मार्क था उसको जैसे ही क्लिक किया तो एक पिन आ गया। पिन को मैंने लेके जगह पे शिफ्ट किया। अब मैंने जगह का नाम लिखा भैरव घाटी, और अगर मान लीजिए पिन मुझे बदलना है तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो कौन सा, मैं मान लीजिए ये कैंप वाला सीन देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो पिन के बदले वो कैंप का साइन आ गया वहां पे। एंड नाउ जस्ट आई से ओके, तो ये प्लेस मार्क बना दिया एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे कि ये जगह का नाम है भैरव घाटी। सो और इधर अगर हम देखेंगे प्लेसेस वाला फोल्डर में जो लेफ्ट साइड में है, तो ये टेम्पररी प्लेसेस के अंदर एक जगह का नाम बन के आ गया भैरव घाटी बोल के इधर। नाउ लेट अस से आई वांट टू डू अ रूट। तो
पिन के साइड में एरिया है, एरिया के साइड में रूट है, तो रूट वाला पिन मैंने क्लिक किया और ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा है यहाँ पे पूरा पिच रोड, तो विजुअल कंफर्मेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे रूट प्लॉट किया। अगर मुझे विजुअल कंफर्मेशन नहीं होता तो मैं उसको मैप से फिर रेफरेंस लेता। तो रूट को प्लॉट करने के बाद उसको थोड़ा मोटा कर दिया, स्टाइल या कलर पे जाकर, स्टाइल और कलर पे, कलर वाला ऑप्शन पे जाके विड्थ इसका मैंने 3 कर दिया, कलर मैंने कर दिया ब्लू। अब ये रूट प्लॉट हो गया। इसका नाम मैंने रखा भैरो घाटी रोड। तो दूसरा फीचर एक क्रिएट हो गया, एक रोड का। So using the toolbar in the upper section, these are the various things that we can do. We can add a pin, we can add a path, like I have just now plotted a path, or I can make a overlay. Overlay वाला सीन पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। But these are some of the basic controls. अभी मैं ये contents को उड़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये बाद में फिर confusion करेगा नहीं तो। So that is as far as the basic controls are concerned. Ground level भी हो गया। अच्छा हाँ, historical imagery एक देख लीजिए। So if you go to Google Earth का views, तो views में एक historical imagery बोल के एक choice आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे views में historical imagery में जैसे कर दिया तो this will start showing me Google Earth के सारे पुराने पिक्चर, जितने भी इमेजेस इस जगह के लिए गए वो सारा डेट वाइज मुझे दिखना चालू हो जाएंगे। सो ये 2013 का एक इमेज है। 2004 में बहुत ही अनक्लियर सा इमेज है इस एरिया का। तो 2004 में पहली बार, शायद ये 2011 में पहली बार बेटर इमेज आया। फिर ये 2014 की इमेज है, ये 2016 की इमेज है। यहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसके चक्कर में आप देख सकते हैं कि लैंड फीचर्स कैसे टूटे हुए हैं, बिकॉज जो रोड की चौड़ीकरण हुई है शायद उसके वजह से ये सारे नदी में गए हुए हैं। मतलब चेंजेस यू कैन सी। सो 2014 में ये नहीं थे, या 2011 में ये नहीं थे, लेकिन 2016 में देखेंगे तो ये चेंजेस आ गए हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इज दैट एनी टोपोग्राफिकल चेंजेस आल्सो यू विल बी एबल टू सी कि उस एरिया में अगर कुछ बदलाव हुआ क्या, कब नहीं हुआ, वो सारा डिटेल भी आपको मिल सकता है। So that is as far as the historical imagery is concerned. और सनलाइट सिमुलेशन का भी इधर ही से मिलता है। जो व्यू वाला स्क्रीन है उसमें से मैं हिस्टोरिकल इमेज को उड़ा रहा हूँ और उसमें मैं डाल रहा हूँ सनलाइट सिमुलेशन। खाली सन पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया। तो ये स्लाइडर में अगर चेंज करता हूँ तो ये मेरे को पूरे दिन में उस पर धूप कैसे चेंज होता है उसका आइडिया दे रहा है। सो आई जस्ट हैव टू चेंज द स्लाइडर and the sunlight का appearance on that particular date दिखा रहा है 16/8/2020। तो 16 अगस्त को जो सनलाइट का खेल होगा गंगोत्री वैली में, वो यहाँ से दिख रहा है। So these are some of the basic controls जो आपके पास Google Earth के अंदर है, जो कि बाद में हमारा काम आएगा। So now let us go to the next slide. So familiarization थोड़ा हो गया आपका Google Earth views and controls के साथ। So I am just quickly passing through rotation and tilt for 3D view, zoom in and zoom out, ground level view, ये सारे controls इधर, historical imagery, marking waypoints and features, फिर measure and confirm distances and slopes, ये वाला भी हम आगे कर लेंगे, and various layers and folders. So that kind of familiarizes you with what is Google Earth. Now let us come to overlaying the map data on Google Earth. So आपके पास मैप ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। Google Earth के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया कि उसको ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे करना है, विभिन्न तरह का व्यूज कैसे लेना है, उसके ऊपर डिटेल्स कैसे प्लॉट करनी है, ये सब आपने देख लिया। अब टाइम आ गया कि हम अपने टारगेट एरिया में अपना ओवरले मैप को ओवरले कराएं। सो ओवरलेड मैप ऐसे दिखता है। तो एक पोर्शन पे मैप चढ़ा हुआ है और बाकी पोर्शन में खाली है। तो जितना कोऑर्डिनेट्स में मैंने मैप को चढ़ाया है उस पे वो चादर जैसे डल गया है। अब मैं इसका 3D व्यू भी लूंगा तो मैप, ये मेरा प्रिंटेड मैप भी 3D टाइप का दिखेगा।
So download the desired map of the target area. Crop all unnecessary areas from the map using image editor. क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि unnecessary area कौन सा होगा मैप का. Then note down the coordinate details of the map corners. Insert overlay from the toolbar. जैसे हम मैप पिन या वो पाथ टूल को इंसर्ट कर रहे थे, वैसे ओवरले के लिए भी एक टूल है, उसको क्लिक करते ही ओवरले वाला स्क्रीन खुल जाएगा. फिल इन ऑल द डिटेल्स. इसमें पर्टिकुलरली डिटेल जो फिल करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स का डिटेल फिल करना होता है कि उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ में क्या है, और लैटिट्यूड उसका नॉर्थ साउथ में क्या है, और लॉन्गिट्यूड उसका ईस्ट वेस्ट में क्या है. ये दोनों डिटेल जैसे ही आप उसको दे देते हैं तो वो सीधा लेकर के मैप को एग्जैक्टली उसी कोऑर्डिनेट्स पे चिपका देता है. फिर क्रॉस चेक कोऑर्डिनेट डिटेल्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने डेटा एंट्री किया लेकिन ओके करते हुए कुछ चेंज हो जाता है, तो इसलिए ओके करने से पहले एक बार सारे कोऑर्डिनेट्स का डिटेल्स चेक कर लें, नहीं तो गड़बड़ दिखेगा. एडजस्ट इमेज रोटेशन इफ नेसेसरी. वहां पे रोटेशन की भी एक चॉइस होती है, वो भी मैं दिखाऊंगा. और जब फाइनली इमेज ओपेसिटी. इमेज को आप अगर 100% ओपेसिटी में रखेंगे तो खाली मैप दिखेगा, मैप के नीचे जो गूगल अर्थ का इमेज है कुछ भी नहीं दिखेगा. अगर ओपेसिटी आप 50% कर देते हैं तो जो मैप आपने कंबल की तरह चढ़ाया है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी 50% हो जाएगी, तो उसके नीचे जो गूगल अर्थ का डिटेल है वो सारा भी आपको साथ साथ दिखेगा. तो ओपेसिटी एडजस्ट करना एक जरूरी स्टेप है, और ये करने के बाद आपका ओवरले क्रिएट हो जाता है. सो इसको थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे करना है. सो नाउ आई वांट टू फर्स्ट शो यू कि मैप क्रॉपिंग क्या होता है. देखिए, जो मैप मैंने अभी डाउनलोड किया था वो ऐसा ही कुछ मैप होगा. फॉर एग्जांपल ये स्विस फाउंडेशन ऑफ अल्पाइन रिसर्च गढ़वाल ईस्ट का मैप है. ये 1:150,000 स्केल में है. या फिर US 502 सीरीज का नंदा देवी वाला जो मैप है. सो ओरिजिनल मैप आपको ऐसे दिखेगा, और इसको हम थोड़ा जूम कर दें तो हाँ. सो इसके टॉप में ऐसे लिखा होगा नंदा देवी, US आर्मी मैप सर्विस, ये सारा कुछ लिखा हुआ है. जब हम इस मैप को गूगल अर्थ में चिपकाएंगे तो ये नंदा देवी और US आर्मी मैप सर्विस ये सब तो हमको नहीं चाहिए ना. हमको खाली कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो यहां से चालू होता है. ये इस कोने से, ये जो कोना वाला पॉइंट है, यही पॉइंट्स ही जाकर के गूगल अर्थ में चिपकने पड़ेंगे. वो लेफ्ट साइड का टॉप कोना हो गया, ये राइट साइड का टॉप कोना हो गया, ये राइट साइड का बॉटम कोना हो गया, और ये लेफ्ट साइड का बॉटम कोना हो गया. सो हमको मैप को यहां तक काटना है. ये बाकी जो डिटेल्स है इस मैप में वो गूगल अर्थ के लिए ठीक नहीं है. हमको खाली मैप वाला पोर्शन गूगल अर्थ में चिपकाना है. तो यहाँ पे इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर का काम आता है. तो इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, केवल इस कॉर्नर पॉइंट्स को चूज करके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ. हाँ, तो मैं इसको खाली ऐसे ही चूज कर लिया. ये बिल्कुल टॉप का लैटिट्यूड बैठ गया. अब देखेंगे कि ये थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस में ये बनाया गया है उसके हिसाब से करीबन 5 डिग्री टेढ़े में है ये पूरा मैप. तो इसलिए थोड़ा सा नीचे और ऊपर आपको खाली जगह दिखेगा. बट ये हो गया मेरा एडजस्ट. मेरा वो केवल वही डिटेल्स हैं जो मुझे चाहिए. लेट अस से समथिंग लाइक दिस. एंड नाउ बिकॉज इट इज Apple iPhoto, I just have to press Command K, या कोई भी क्रॉपिंग कमांड अगर हम देंगे तो वो कट गया. तो अभी अब अगर आप देखेंगे तो मैं जूम इन करूंगा तो नंदा देवी फंदा देवी वो सारा उड़ गया. मैप केवल कोने से कोने तक है और उसमें से बाकी सारे एडिशनल डिटेल्स सारे उड़ गए. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैप क्रॉपिंग. मैप को ओवरले कराने से पहले ये कार्यक्रम करना बहुत जरूरी होता है, ताकि अननेसेसरी डिटेल मैप का जाकर के गूगल अर्थ में जब चिपकेगा तो उसको गड़बड़ ना करे. सो दिस इज हाउ वी फर्स्ट क्रॉप द मैप. मैप एक बार क्रॉप हो गया तो अब वो कंबल चढ़ाने के लिए तैयार है. और कंबल हम कैसे चढ़ाएंगे,
हम सबसे पहले यहां पे जाएंगे। ये जो डबल कागज टाइप का दिख रहा है, इसको क्लिक करते ही ये ओवरले वाला टूल है, अनटाइटल्ड इमेज ओवरले करके आ गया। तो लेट अस से रतलाम धूरा सैंपल मैप। अब ये पूछेगा भैया रतलाम धूरा सैंपल मैप है कहां पे, तो मैं ब्राउज करूंगा। ब्राउज में मुझे पता है कि मेरे ये वाला ड्राइव में इस जगह पे मेरे पास वो मैप है। सो मैंने मैप का लोकेशन उसको दे दिया। ये कटा हुआ मैप है बाय द वे। सो अब जैसे ही मैंने उसको मैप का लोकेशन दे दिया, मैं जहां भी खड़ा था वहीं पे आके वो चिपका दिया मैप, जबकि ये वो जगह नहीं है। हम अभी गंगोत्री में है और ये रतलाम धूरा का मैप है। तो अब उसको अपने जगह पे ले जाना है। अगर आप देखेंगे तो मैंने मैप का नामकरण में ही उसके कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं। सो इट इज 30-30-30, मतलब द लैटिट्यूड्स आर 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, दैट इज द लैटिट्यूड वैल्यू। और 80-80-30 लिखा है, मतलब 80 डिग्री ईस्ट एंड 80 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, सॉरी 80 डिग्री वेस्ट एंड 80 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मैप। सो मैं अब वो लोकेशन उसको खाली बता दूंगा कि भैया ये 30 डिग्री साउथ, सो ये 30 डिग्री साउथ में है, ये 30 मिनट नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूड आ गया, सॉरी, ओहो, हाँ। सो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ आ गया इसका। और ये था 80 और 80-30। सो ये हमारा वेस्ट आ गया 80 डिग्री और ये आ गया 80 डिग्री और 30 मिनट। ये देखा, मैं ओके कर दिया, फिर भी ये डेटा गलत ले लिया है इसने, इसलिए रिकन्फर्म करना बहुत जरूरी है। सो 80 डिग्री 30 मिनट और ये है 80 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री। अरे सॉरी, समथिंग रॉन्ग। हाँ, सो हमने जैसे ही वो सारे डेटा उसमें डाल दिए कि 80 डिग्री इधर डाला, 80 डिग्री 30 मिनट ऊपर डाला, 30 डिग्री इधर डाला, 30 डिग्री 30 मिनट ऊपर डाला, जैसे ही डाला और ओके कर दिया तो मेरा मैप जाकर के इधर चिपक गया, जगह पे, स्पॉट पे पहुंच गया बिल्कुल मैप। सो नाउ यू कैन सी दैट मेरा कटा हुआ मैप जो था 30 डिग्री साउथ, 30-30 नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट और 80-30 वेस्ट, 80-30 वेस्ट एंड 80 डिग्री वेस्ट एंड 80-30 ईस्ट वाला जो मैप था वो आकर के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे चिपक गया है। सो नाउ द मैप इज ऑन गूगल अर्थ। सो अगर मैं इसको टेढ़ा करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर अभी मैप चढ़ा हुआ है। सो और मैप देखने से लग रहा है कि मैप के जो डिटेल्स हैं और जो डेप्थ निकल रहा है, जैसे यहाँ पे वैली दिखा रहा है, अगर आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन देखें तो ये जो लाइन है ये वैली दिखा रहा है और उसके साइड में डॉटेड लाइन है, वो चलता हुआ ट्रैक है, वो ट्रेकिंग रूट है। सो वो डेप्थ वाइज भी देखें तो बिल्कुल वैली वाली जगह पे आ रही है।
So that tells me that the map is more or less correctly overlaid. So अब क्या हुआ, मैप आकर के चढ़ गया गूगल अर्थ के ऊपर. अब मुझे पॉइंट्स मार्क करने हो जाएंगे आसान. वो कैसे? जैसे यहां पे दिखा रहा है रूपसिया बगड़ बोल के जगह का नाम है, तो मैं सीधा जाऊंगा, वे पॉइंट पकड़ूंगा, वे पॉइंट को लगाऊंगा रूपसिया बगड़ के ऊपर, लिखूंगा भैया इसका नाम है रूपसिया बगड़. तो ये जगह क्रिएट हो गया रूपसिया बगड़. सिमिलरली मुझे अगर नदी दिखाना है कि ये गोरी गंगा नदी है, तो ये गोरी गंगा नदी मैंने प्लॉट कर दिया. या रलाम गंगा फॉर एग्जांपल, ये रलाम गंगा आ रहा है इधर से, या रलाम गाड़ जिसको बोलते हैं. सो ऐसे करके मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसको बोला कि रलाम गोरी, यानी कि रलाम गंगा और गोरी गंगा का जो कॉन्फ्लुएंस है वो दिखा रहा है, और इसको कर दिया ओके. तो ये जगह भी बन गया. अब मजे की बात यह है कि अब मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा ओवरले वाला जो कनेक्शन था उसको अगर मैं अनचेक कर देता हूं तो ओवरले उड़ जाता है, वो व्यू में आना बंद हो जाता है, और मैंने जो नदी प्लॉट किया था वही दिख रहा है. सो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब ओवरले मैप की जरूरत नहीं है, अब मैं केवल इसी का फोटो ले लूंगा तो मेरे सारे फीचर्स उसके ऊपर मार्क होकर के हैं. नदी, अब मैं ओवरले मैप हटाने के बाद मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि जो नदी मैंने मार्क किया था वो विजुअल जो नदी है उससे थोड़ा हट के है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनर करेक्शन, जो कि विजुअल कंफर्मेशन से करते हैं हम, कि एक बार मैप को देख के आपने रफ प्लॉटिंग कर दी, उसके बाद विजुअल कंफर्मेशन से आप उसको Sorry, we seem to have lost Ashutosh's video. Just stand by, he'll come back. कैपेसिटी को 100% कर दे रहा हूं तो मैप हैज बिकम ओपेक, उसके नीचे क्या है नहीं दिख रहा है. मैप को मैं 50% ओपेसिटी में रखता हूं तो थोड़ा नीचे का भी फ्लेवर देता है कि कहां पे ग्रीनरी है, कहां पे व्हाइटनेस है, और मैप का डिटेल भी दिखाता है. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ ओपेसिटी. तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक मैप ओवरले डाला है, फिर मैंने रूट्स एंड रिवर्स करके एक अलग डायरेक्टरी बनाई है, उसमें ये सारे पॉइंट्स डाले हैं. तो अगर आप देखेंगे तो सारे ग्लेशियर्स का नाम, ऊपर से ये रास्ता आता है, इसके बाद डिटेल नहीं है. तो यहाँ पे हमें थोड़ा अपना आइडिया लगाना पड़ेगा कि कहाँ से रास्ता हो सकता है. रफ रास्ता तो ये है कि एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर से मैं प्लॉट कर रहा हूं, और ये रहा रलामधुरा का एग्जैक्ट मार्कर, जो कि मैप में भी क्रॉस मारा हुआ है यहाँ पे. सो यहाँ से रलामधुरा का क्रॉसिंग हो गया, और यहां से जाके फिर से एक ट्रेक रूट चालू हो रहा है. ये डॉटेड लाइन यहाँ पे चालू हो रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये ट्रेक रूट है, यानी कि शेफर्ड्स का रूट हो सकता है शायद ये. तो उसके ऊपर से हमने उसको देखते हुए हमने रूट प्लॉट कर दिया. यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई ब्रिज का सीन है, जैसे यहाँ पे ब्रिज का फोटो दिख रहा है, तो उसको भी हम बाद में मार्क कर देंगे. बट ये बता रहा है कि यहाँ पे नदी शायद टापना पड़ सकता है. तो दैट इज हाउ I will go on plotting my road till this village called Sipu. ये सीपू करके कोई गांव है, वहां तक ये अपना लाइन प्लॉट हो गया. So this we will name as Ralam Dhura.
Okay, so we just now plotted the route of Ralam-Dura, but I am not 100% confident. मैप को देखते हुए हमने रफली इसको प्लॉट किया है. तो इसका फाइन ट्यूनिंग कैसे होगा? फाइन ट्यूनिंग के लिए हमको रियल इमेज पे जाना पड़ेगा. रियल इमेज में दिख रहा है कि मोर और लेस जगह ठीक है. शायद इस जगह पे यहां से उतरा ही होगा, व्यू से ऐसा लग रहा है. So maybe it will be like this. Similarly, left side में ग्लेशियर थोड़ा क्रिवास्ट लग रहा है. So as a expedition leader, I would want them to come to the right lateral moraine, क्योंकि सीधा आगे को डाउनस्ट्रीम फ्लो है ग्लेशियर का. So ये खैर ये सब का डिटेल एकदम लास्ट पॉइंट पर जाके पता चलेगा, बट अभी इमेज देख के जो लग रहा है थोड़ा कम प्रॉब्लमेटिक एरिया से मैं रूट को प्लॉट करना चाह रहा हूं. तो यहां से पानी का धार निकल रहा है, तो एक प्रोबेबल कैंप साइट यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से क्रिवास मेजर क्रिवास एरिया चालू हो रहा है. सो मे बी बेटर रास्ता इज दिस, जो ऊपर से आ रहा है. Sorry. So anyway, so that is just to indicate that these are the kind of changes that can be done to your once you have plotted the rough route. रफ रूट होने के बाद ये एक्चुअली सबसे परिश्रम वाला काम होता है, जिसमें कि आप इंच बाय इंच विजुअल कंफर्मेशन ले रहे हो कि रूट सही है कि नहीं. So, यहाँ पे बुद्धि इतना ही कहता है कि पानी जहां से आ रहा है उसके साइड से रास्ता ठीक रहेगा. So like that, we plot the route, we decide the exact place to cross over. यहाँ पे जैसे अब हम टेरेन देख रहे हैं, तो सॉरी, तो इसको सेव कर देते हैं. So some finer adjustments can be done here also, कि exact climbing route कहाँ से रखेंगे. But just to make the point, you first used overlay to first mark the broad area, then you take out the overlay, use the direct image and see what is looking to be the most probable route. So that is how a route will be plotted in Google Earth. Campsite can also be plotted. ग्लेशियर कहाँ पे है वो भी दिखा सकते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे पीक्स और उनके हाइट ये भी मार्क कर देना जरूरी होता है, क्योंकि जीपीएस में अगर रहेगा ड्यूरिंग एक्सपेडिशन तो कौन सा पीक का क्या नाम है ये सब जानना बड़ा आसान हो जाता है. आपको खाली जीपीएस उधर डायरेक्शन में पॉइंट करना है और देखना है कि पीक का नाम क्या है. सो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा पिक का नाम क्या है. सीधा आपके पास अगर मैप है तो मैप के हिसाब से जो पिक का नेम है एग्जैक्टली वही पॉइंट आपको जीपीएस दिखाएगा. सो इसको मैं अभी फिलहाल हटा दे, नहीं हटाया नहीं, इसको रहने दीजिए. इसको रूट्स एंड रिवर्स में हमने डाल दिया. सो दैट इज टू इलस्ट्रेट हाउ द ओवरले इज टू बी डन. सो ये ओवरले कैसे डालना है, आपको ओवरले वाला पिन पे क्लिक करना है. मैप को उससे पहले तैयारी करना है, मैप को डाउनलोड करें, उसका साइड से सारा कटाई कर दें. फिर नोट द कोऑर्डिनेट डिटेल्स ऑफ द मैप कॉर्नर्स. मैप के जो चारों कोने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स का क्या डिटेल है आप रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें कि लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ क्या है और लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट क्या है. और जो डायलॉग बॉक्स आएगा गूगल अर्थ में उसमें खाली आपको लोकेशन फीड करना है और ओवरले का नाम देना है और ओके प्रेस कर देना है. सो फिल इन ऑल द डिटेल्स. देन क्रॉस चेक कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया कि एक बार करने के बाद मैप ठीक से दिख रहा है कि नहीं, वैली के साथ वैली कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, ये सब क्रॉस चेकिंग वाले पॉइंट है.
फिर इमेज ओपेसिटी करके आपने मैप ओवरले कर दिया। नेक्स्ट कम्स द जीपीएस नेविगेशन प्लान। तो इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि वे पॉइंट्स, रूट्स, कैंप साइट, पीक्स, रिवर्स, ब्रिजेस, ये सबको कैसे प्लॉट करना है, क्योंकि नदी कहाँ है, नदी को क्रॉस करने का ब्रिज कहाँ है, कैंप साइट्स कहाँ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है किसी भी एक्सपीडिशन टीम के लिए। क्योंकि आपको रात का कैंप कहाँ करना है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए, और उसके ऑल्टरनेट स्पॉट्स क्या हैं वो भी माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये सारे फीचर्स सबसे पहले क्रिएट करने होते हैं मैप को देखते हुए, और मैप ओवरले में डालने के बाद ये सब हम कर सकते हैं। रिकन्फर्म द मार्किंग्स थ्रू हिस्टोरिकल इमेजरी, 3D टिल्ट व्यू, ये सब भी मैंने आपको दिखाया कि रूट को रिकन्फर्म कैसे करना है। ग्लेशियर क्रीवास एरिया पर्टिकुलरली में आपको रिसेंट इमेज को देख के रूट प्लॉट करना होता है, जानबूझ के कोई मोटा क्रीवास वाला एरिया से आप रूट प्लॉट नहीं करेंगे। सिमिलरली कैंप साइट सेफ्टी आपको देखना है इसी टाइम में कि जहां पे भी आप कैंप साइट लगा रहे हैं वहां पे जल्दी सनलाइट पड़ रहा है कि नहीं सुबह सुबह। सेकंड मतलब मेन बात है पानी आसपास है कि नहीं, एवलांच स्लोप्स हैं कि नहीं आसपास, फ्लैश फ्लड के कुछ मार्क्स दिख रहे हैं क्या। ये सारे आपको इंफॉर्मेशन गूगल अर्थ इमेजरी से टू सम एक्सटेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी चॉइस 1 कैंप साइट कौन सी है, चॉइस बी सी कौन से हैं। नॉर्मली हम लोग हर कैंप साइट के लिए 2-3 चॉइस लेके जाते हैं कि टारगेट एरिया अगर नहीं पहुंच पाए तो कहाँ पे बीच में कैंपिंग का स्पॉट है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड देन विजुअल चेक्स के द्वारा रूट कंफर्म करना और कॉन्टूर मैप के द्वारा रूट कंफर्म करना, ये भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं जो हमने अभी प्रैक्टिस कर रहे थे उस पर। सो फॉर एग्जांपल कॉन्टूर मैप के लिए मैं अभी गूगल का ग्लोबल टेरेन ओवरले लगाने वाला हूं। तो जैसे ही मैं गूगल टेरेन ओवरले लगा दूंगा ये सारे इमेज चेंज होकर कंटूर मैप में तब्दील हो जाएंगे। तो अब मुझे ये देखना है कि भैया मेरा रूट जिधर से जा रहा है वो कॉन्टूर सही लग रहे हैं या बहुत मतलब स्टीप वाले कॉन्टूर्स हैं। सो दैट कंफर्मेशन वी कैन डू। इसको आप जितना जूम इन करोगे वो उतना जूम इन पे वो दिखाएगा। अब देख रहे हैं कि ये एक लेयर लोड कर रहा है, उसका ओरिजिनल गूगल अर्थ का इमेज के ऊपर ये एक लेयर लोड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आसान सा स्लोप है, कॉन्टूर मैप भी दिखा रहा है जहाँ ये वाला स्लोप ठीक ठाक ही लग रहा है, तो इसीलिए पुराना रास्ता भी इधर ही से है। कॉन्टूर वाइज ये पास वाला एरिया में यहाँ पे हमको थोड़ा केयर लेना है कि इधर से आने से बेटर रहेगा कि इधर से आने से बेटर रहेगा। बट ये हमने प्लॉट इसलिए किया था क्योंकि वहां से नदी जा रही थी, नदी जाएगा तो उसके साइड में से जाना आसान रह सकता है। फिर यहाँ पे आपको स्लोप वाइज ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है कॉन्टूर मैप से अगर हम चेक करें, और ये एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट है, ये भी रिकन्फर्म कर सकते हैं आप कॉन्टूर मैप से। कॉन्टूर मैप क्योंकि आपको क्लियरली बता देगा कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। सो लोएस्ट पॉइंट को टिपिकली आप चूज करेंगे क्रॉस ओवर करने के लिए। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टूर मैप। और अगर मुझे इमेज पसंद नहीं आया तो मैं बिंग मैप का इमेज लगा सकता हूँ। तो ये सारे मेरे पास ये ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का इमेज है, तो जो कि आपको गूगल वाले का इमेज से थोड़ा अलग ही दिखेगा। तो कई बार जैसे गूगल वाला इमेज में काफी बर्फ है, इस वाले में उतना बर्फ नहीं है, तो ग्राउंड का डिटेल दिख रहा है। सो मे बी प्रिंटेड मैप के लिए मैं शायद इसको यूज कर लूं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग दीज ओवरलेज। ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने ये सारे ओवरलेज अपने लगा रखे हैं क्योंकि ग्लोबल ओवरलेज है, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। ये पूरा गूगल अर्थ को चढ़ा देता है ये वाला ओवरलेज। सो कॉन्टूर चेकिंग हो गया, विजुअल डेटा से हमने रूट चेक कर लिया रफली। इस पे भी और अगर मुझे कंफर्मेशन लेना है तो और भी तरीके हैं कि मैं हिस्टोरिकल इमेजरी में जाता हूँ और देखता हूँ कि जब बिल्कुल बर्फ कम होता है तो क्रिवास कहाँ दिखता है। अगर ऐसा कोई इमेज है तो, जरूरी नहीं कि हर जगह पे होगा, बट अगर होता है तो थोड़ा फायदा हो जाता है। ये पुराना मैप है, ये पुराना इमेज है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें क्लाउड है, सो दिस इमेज इज नॉट गुड। सो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी है, क्रिवासेस और थोड़ा दिख रहे हैं, लेकिन ये 2014 का इमेज है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट by using historical images we can get various views of that specific area। और क्रिवास में अक्टूबर का इमेज और फरवरी का इमेज में बहुत फर्क होता है। अगर आप फरवरी का इमेज आपका लगा हुआ है वहां पे तो कुछ नहीं दिखेगा क्रिवास कहाँ है,
लेकिन अगर हिस्टोरिकल इमेजरी जाके स्कैन करें और देखें कोई अक्टूबर वाला इमेज मिल जाए तो ग्लेशियर के ऊपर रूट प्लॉट करना काफी आसान होता है अक्टूबर वाली इमेज से, क्योंकि उसमें बर्फ नहीं होता ऊपर, जहां पे भी क्रिवास होगा दिखेगा। तो जब हमने चूंसा गागा किया था, इनफैक्ट मेरे जीपीएस ने बताया कि इधर नहीं जाना है और वहां पे क्रिवास है। So those are the kind of things you can, because you can't lose unnecessary time because of some silly mistake like that. So all that planning should be there in your GPS. That is why. तो वो हो गया. Then let us quickly see what else is. So create downloaded map layer हो गया, reconfirm हो गया, route confirmation हो गया. एलिवेशन प्रोफाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. दैट इज ये रूट प्लानिंग का फाइनल स्टेप है. रूट प्लानिंग का फाइनल स्टेप ये है कि जो रूट मैंने प्लॉट किया है, स्पेशली वी डू दिस फॉर द मेन डे, जो मेन आपका हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव वाला डे है. तो रूट एक बार प्लॉट करने के बाद रूट के ऊपर आप माउस पॉइंटर रखें, राइट क्लिक करें, तो जो स्क्रीन आएगा उसमें शो एलिवेशन प्रोफाइल करके आता है चॉइस. जैसे ही आप बोलोगे उसको शो एलिवेशन प्रोफाइल, ये इस रूट का एलिवेशन प्रोफाइल दिखाएगा कि इसकी टोटल डिस्टेंस जो ये रूट लाल रंग में दिख रहा है, ये 28 किलोमीटर का रूट. दिस इज 28 किलोमीटर ऑफ रूट प्लॉटेड, जो आप एक्स एक्सिस में रूट का ঠিক মাত্র একটু করে কি রাখবো বাজার. Okay. So this tells me that my highest point is 5625 or 5640 meters. और कहाँ पे रूट ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है उसका भी एक आइडिया वो दे दे रहा है. Plus it is telling me that the maximum slope is 66% and average slope is 17%. So average slope 17% is good, but maximum slope 66% is not good, because for a easily doable route you would want the maximum slope not to be more than 30-35%. 60% is too steep. So loaded porter climbing वाला काम होगा. तो loaded porter को ले जाने के लिए normally हम लोग 30 to 35% का max slope. अब आपको ये भी पता चल सकता है कि max slope. All participants please come on mute. Please go on mute. Varun Sen, please go on mute. Valsama, please. So अगर आप ये माउस पॉइंटर को जैसे ही आप रूट के ऊपर मूव कर रहे हैं, ग्राफ के ऊपर आपको वैल्यू चेंज हुआ नजर आ रहा है कि नीचे आ रहा है परसेंटेज स्लोप, ऊपर आ रहा है मीटर्स का ऑल्टीट्यूड. सो यहां से मुझे पता चल सकता है कि डिफिकल्ट वाले जैसे 53% दिखा रहे हैं, यानी कि समवेयर नियर द पास देयर इज दिस डिफिकल्ट स्लोप दैट इज प्रोबेबली रॉन्गली प्लॉटेड. क्योंकि जो पुराना रूट्स हैं नॉर्मली 60% 70% वाले ग्रेड में नहीं होंगे, दे वुड नॉर्मली बी 30-40%. लेकिन वो सारा डिटेल तो हमको अभी दिखेगा नहीं. सो बट इतना पता चल रहा है कि पास के चढ़ाई के वाला एरिया में कुछ 50-60% का ग्रेडेशन आ रहा है. सो वी मे वांट टू रीचेक आवर रूट नियर द पास. रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज लुकिंग ओके. यहाँ पे थोड़ा सा हेवी दिखा रहा है, जो पास से उतराई वाला एरिया है वहां पे भी स्लोप थोड़ा हेवी दिखा रहा है. सो elevation profile gives me exact technical reading of where the route is going to be difficult, where the route is going to be easy. But obviously this profile will change the moment I change the plotted route. तो route को मैं आगे पीछे करूंगा, थोड़ा लेफ्ट को ले जाऊंगा, थोड़ा सामने ले जाऊंगा, तो ये ग्राफ का नेचर भी चेंज हो जाएगा कि रूट जिसके ऊपर से प्लॉटेड है वही दिखेगा एलिवेशन प्रोफाइल. सो that's as far as the profile check is concerned. So हमने अभी तक ये चेक कर लिया कि गूगल अर्थ की बेसिक कंट्रोल्स क्या हैं. हमने ये डिस्कस किया कि कहाँ से कौन सी रिसोर्सेज डाउनलोड करने हैं. हमने ये चेक किया कि गूगल अर्थ के बेसिक कंट्रोल्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मैप को ओवरले कैसे कराना है, और ओवरले कराने से पहले मैप की कटाई छटाई कैसे करनी है. ओवरले करने के बाद उसके ऊपर फीचर्स कैसे डालने हैं मैप को देखते हुए, मैप को रेफर करते हुए, वो हमने डिस्कस किया. और फीचर्स प्लॉट करने के बाद एक फाइनल कंफर्मेशन विजुअल तरीके से और टेक्निकल तरीके से कैसे करना है वो भी हमने देखा. टेक्निकल तरीका बेसिकली मैं स्लोप्स के बारे में बात कर रहा हूँ. सो उसके बाद आता है द प्रिंटिंग ऑफ द मैप. नाउ दिस इज वेयर यू गेट टू क्रिएट योर ओन मैप. क्योंकि जो डिटेल्स आपने प्लॉट करने थे वो आपने कर दी है. अब
you want to take one copy of this in your GPS and you want to take one set of printout in your expedition kit bag, क्योंकि डेली सुबह बैठ के डे प्लान करने के लिए वो काफी काम आता है, स्पेशली अनएक्सप्लोर्ड टेरेन में। तो मैप प्रिंट करने के लिए मुझे चाहिए कि खाली गूगल अर्थ का इमेज के ऊपर मैप डिटेल्स हो, क्योंकि गूगल अर्थ का इमेज में सबसे ज्यादा डिटेल रहता है, जो कि एक लिखा हुआ मैप में नहीं होगा, उसमें फोटो के सहित वो रहता है। सो अननेसेसरी कोई लेयर अगर है तो उसको अनचेक कर दें, जैसे जो मैप ओवरले था उसको अनचेक कर दिया, वो कॉन्टूर मैप का ओवरले था उसको अनचेक कर दिया, सब कर दिया, खाली गूगल मैप का बेस इमेज रहेगा। देन व्यू वाला जो मेन्यू है वहां पे ग्रिड व्यू बोल का एक चॉइस है, वी विल डू दैट प्रैक्टिस जस्ट नाउ। वो ग्रिड व्यू चॉइस को सिलेक्ट करना है। ग्रिड व्यू जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाना शुरू कर देगा गूगल अर्थ के इमेज के ऊपर। सो पूरे जैसे प्रॉपर मैप में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है वैसे प्रिंट में भी आएगा। फिर अनचेक द टेरेन व्यू, नीचे जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के फोल्डर्स दिखाए थे 3D व्यू को बेसिकली माइनस कर देना है, क्योंकि 3D व्यू में अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो वो लाइन टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, तो इसलिए उसको 2D व्यू में ले आइए और फिर उसका मैप प्रिंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। अब क्या है, आपके सामने केवल गूगल अर्थ का इमेज है और उसके ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड्स और उसके रेफरेंसेस हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप गूगल अर्थ का इमेज नहीं चाहते हैं, आप उसमें केवल कॉन्टूर चाहते हैं, तो कॉन्टूर वाला लेयर लगा के उसके ऊपर ग्रिड व्यू कर दीजिए, तो आपके जो प्रिंट आउट आएगा उसमें खाली कॉन्टूर आएगा, उसमें कोई इमेज नहीं आएगा। फिर डे वाइज स्क्रीनशॉट लीजिए एक लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन में। यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन काम का होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी एक 27 इंच का डिस्प्ले स्क्रीन है, तो मैं इसका जो स्क्रीनशॉट लूंगा वो एक बड़ा सा इमेज बन के निकलेगा। सो इट विल बाय इटसेल्फ बी अ बिग इमेज, बट वही स्क्रीनशॉट में अगर एक 13 इंच का मॉनिटर में लूंगा तो जो इमेज साइज होगा वो छोटा होगा। सो इसलिए बिग डिस्प्ले स्क्रीन हेल्प्स फॉर प्रिंटेड मैप। फिर प्रिंटेड मैप का भी, जब आपका मैप एक बार बन गया तो उसके अननेसेसरी एरियाज को काट के आपने उड़ा दिया। और अगर बड़ा मैप बनाना है, जैसे 3-4 दिन का पूरा एक्सपेडिशन का एक सिंगल मैप बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको हगिन यूज करके फोटोज को स्टिच करने पड़ेंगे। जो आपने डे वाइज सारे मैप्स बनाए थे उन सबों को जोड़ने पड़ेंगे ताकि वो सिंगल मैप पेज में आ पाए। बट पहले से बता दूं कि उस हिसाब से अगर आप मैप पेज बनाएंगे तो कई बार मैप पेजेस बहुत बड़े बन जाते हैं। समटाइम्स द मैप फाइल्स बिकम 100 मेगाबाइट्स। जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो कोई 8 फुट बाय 4 फुट का मैप निकलेगा। और सो वन हैज टू बी केयरफुल कि कितना बड़ा मैप आप बना रहे हो, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि गूगल अर्थ का इमेज का रिजोल्यूशन बहुत तगड़ा है। तो हम जैसे डिफेंस सीरीज मैप को 1:50,000 कहते हैं, अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका मैप 1:5,000 1:10,000 भी बन सकता है, बिकॉज उतना क्लोजर व्यू आपके पास है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रेफरेंस आपके पास है। सो उसका एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो नॉर्मली कैसे होता है कि मान लीजिए कि आपने सारे मैप आप सारे प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे, क्योंकि आपने जब उसको 2D व्यू में ले आए तो स्क्रीनशॉट आप ऐसे लेंगे। लेकिन याद रखें कि जब अगर आप इसको जोड़ के बड़ा मैप बनाना है तो वो नीचे जो गूगल अर्थ लिखा रहता है, साइड में जो कंट्रोल्स रहता है, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, वो सब आपको हटाना है। तो आपको याद रखना है कि जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसका एक्टिव एरिया केवल इतना है, ना कि जो पहले था। सो ये देखिए, ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है। इसके ऊपर वो टूल बार का व्यू आ रहा है, नीचे गूगल अर्थ आ रहा है। तो उसका जो लाल रंग वाला जितना एरिया उसको क्रॉप करके मुझे रखना है, बाकी एरिया उड़ा देना है, क्योंकि वो फिर स्टिचिंग करते हुए प्रॉब्लम करेगा। सो एक बार ऐसे हो गया तो मेरे जो टारगेट एरिया है उसकी मैं विभिन्न तरह का स्क्रीनशॉट लेता हूं ऐसे। और याद रखें कि स्टिचिंग सॉफ्टवेयर में डालने के लिए ये सारे स्क्रीनशॉट्स के बीच में 30%, 20 to 30% का ओवरलैप होना जरूरी है। तो ये मैंने क्रॉप करके पहला स्क्रीनशॉट लिया, फिर ऐसे करके आप देख रहे हैं कि सारे स्क्रीनशॉट इमेजेस के बीच में ओवरलैप है, इसमें जो डिटेल है उसमें भी वो डिटेल है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो स्टिचिंग सॉफ्टवेयर है उसको पता चलेगा कि किस पिक्चर के साथ किसको जोड़ना है। तो ओवरलैप अगर नहीं देंगे तो सॉफ्टवेयर को पता नहीं चल पाएगा कि किसके साथ किसको जोड़ना है। बट अगेन इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि अगर 30% ओवरलैप दे करके आपने ऐसे इमेजेस
क्रिएट किए हैं, तो ये सारे इमेज आप हगिन के अंदर डाल दें, वो सब उसको पता चल जाएगा कि किसको ऊपर रहना है, किसको नीचे रहना है, किसको लेफ्ट में, किसको साइड में, कौन सा पिक्चर कहाँ रहना है, वो सारा सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है ओवरलैपिंग एरिया का एनालिसिस करके, और फिर वो फाइनली एक सिंगल बड़ा पिक्चर क्रिएट करके आपको देता है। तो जब आप हगिन सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो आपको पूछेगा कि कौन कौन सा स्क्रीनशॉट को आपको जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट सारे उसको दे रखे हैं कि ये 6 स्क्रीनशॉट्स को जोड़ना है। आप देखेंगे तो मैंने स्क्रीनशॉट्स को नंबरिंग भी कर रखा है 1 2 3 4 5 6 करके मैं जैसे ही उसको ओपन बोलूंगा तो एक वो दूसरा स्क्रीन देगा, वो बोलेगा कि भैया ये जो शॉट्स आपने लिए हैं उसकी वो कुछ टेक्निकल वैल्यू पूछता है। तो उसमें याद रखें कि ये वाला जो फील्ड है HFOV, वहां पे 10 लिखना है बस। प्लीज रिमेंबर दिस, you have to just write HFOV as value 10. The moment you feed that, वो पूछता चला जाएगा और एक में 10 10 10 लिखना है। फिर वो ये वाला स्क्रीन ले आएगा, वो पहले सारे पिक्चर्स को अपने आप ऐसे आसपास रखेगा। फिर वहां पे हमको क्लिक करना होता है अलाइन। जैसे ही हम अलाइन करेंगे तो वो एनालिसिस करना चालू करेगा कि कौन सा फोटो किसके साथ ओवरलैप में है, और फिर वो अपने तरफ से एनालिसिस करके एक बड़ा इमेज बना देगा कि भैया सारे फोटो को जोड़ने के बाद ऐसा एक इमेज आ रहा है। वहां पे मैंने चॉइस लिया है कि PNG फाइल चाहिए कि JPEG फाइल चाहिए, वो लाल वाला गोला जहाँ पे है, और ओके प्रेस करना है। और जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे ऐसे बड़ा मैप बन के तैयार हो जाएगा। नाउ दिस मैप दैट आई हैव क्रिएटेड इज अबाउट 4 फीट लॉन्ग। इसका अगर फिजिकल प्रिंट आउट लेंगे आप तो 4 फुट बाय 2 फुट का मैप है। सो और उतना डिटेल में भी है, इसको आप जूम इन करेंगे पूरा उतना ही डिटेल दिखेगा, बिल्कुल प्रिंट आउट निकालेंगे उतना ही डिटेल दिखेगा। सो इट्स अ ह्यूज मैप दैट यू हैव क्रिएटेड अलोंग विथ all the latitude longitude details. Latitude longitude detail भी आपको इसमें दिख रहा होगा। So and the base imagery of the map is Google Earth imagery जो आपको दिख रहा है। So now with a map like this you have almost the view of the entire area जहां पे आपका पास है जिसको आपको क्रॉस करके जाना है। So and अगर आप ओरिजिनल स्क्रीनशॉट को देखें तो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट का साइज इतना ही था जितना ये ब्लू रेक्टेंगल में है। हमने 6 ऐसे शॉट लिए और उनको स्टिच कर दिए तो एक सिंगल मैप बन गया। सो दैट इज दैट। सो मैप स्टिच करने में कोई ज्यादा इशू नहीं है। आप हगिन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट को बिल्कुल 2D व्यू एकदम वर्टिकल व्यू में रख के उसके साइड के सारे अननेसेसरी एरिया उड़ा दें, 30% ओवरलैप रखें 2 पिक्चर्स के बीच में, और वो 10 का वैल्यू आप इंसर्ट करना है जब आपका पहला डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि दिखाया मैंने वहां पे, और उसके बाद बाकी काम सॉफ्टवेयर का है। फिर वो आपको एक फाइनल फाइल पकड़ा देगा। यू हैव टू डू नथिंग आफ्टर दैट। सो वंस दैट इज डन, योर प्रिंटेड मैप वाला जो कहानी था वो खत्म हो गया। तो आपने पहले मैप ओवरले किया, फिर मैप को देखते हुए सारे फीचर्स गूगल अर्थ के ऊपर प्लॉट कर दिए, और प्रिंटेड मैप का भी कहानी आपने कर दिया। और जब तक आपने सारे चीज प्लॉट किए तब तक आपका एक ऐसा फोल्डर क्रिएट हो गया, जैसे मैंने आपके फोल्डर क्रिएट करके IMF मैप मेकिंग बोल के, और उसके अंदर मैंने ये सारे अलग अलग करके कर रखे हैं। ओवरलेज अलग, रूट्स एंड रिवर्स अलग, प्लेस मार्कर्स अलग, पिक्स एंड पासेस अलग, ताकि अगर मुझे बिना किसी डिटेल का भी एक मैप का प्रिंट आउट चाहिए तो वो सब करना आसान होगा। आपको खाली ये चेक अनचेक कर देना है तो डिटेल्स उड़ जाएंगे ऐसे, और अगर वो फिर से चेक कर देता हूं तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज सेव दिस फोल्डर एज ए KMZ फाइल या KML फाइल। अगर इसके अंदर ओवरले है तो आप KMZ करेंगे, अगर ओवरले नहीं है तो KML करेंगे। कैसे? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, सेव प्लेस एज, ये नीचे आपका चॉइस आ रहा है KMZ करूं कि KML करूं। अगर मैप के साथ कर रहे हैं तो KMZ करिए, बिना मैप का कर रहे हैं तो KML करिए। कुछ भी कर रहे हैं आपका, जो अब इसको मान लीजिए मैं वहां पे सेव कर देता हूं, तो ये फाइल सेव हो गया। तो ये फाइल जो सेव हुआ, सॉरी, कहां से हुआ भैया, ये है, ये KMZ फाइल अभी बन के सेव हुआ है। तो ये फाइल को मुझे सिंपली ट्रांसफर कर देना है अपना गार्मिन, अपना GPS में।
जीपीएस जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में घुसाएंगे वो अपना एक ड्राइव बता देता है, तो उस ड्राइव के अंदर होता है, नॉर्मल प्लेसेस भी होता है, कहीं पे केएमएल फाइल अगर है तो कहीं पे भी डाल दे। बेस्ट है कि कस्टम मैप बोल के एक डायरेक्टरी होता है, किसी भी जीपीएस का हार्ड डिस्क अगर आप खोलेंगे तो उसमें एक डायरेक्टरी होगा कस्टम मैप, तो उस डायरेक्टरी में आपको ये फाइल लेकर के ड्रॉप कर देना है सिंपली। उसके बाद योर जीपीएस हैज नाउ गॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इनटू इट्स स्क्रीन। जब आप स्पॉट पे होंगे तो ये सारे डिटेल आपके जीपीएस स्क्रीन में दिखाई देगा। So it's very simple. Basically, जब हम ensure saving all the work done in Google Earth onto a single file. Sorry. Check and load the custom map as well. Custom map as well is located in the folder. Sorry, folder. Save the folder in KMZ format. Transfer the KMZ file thus created into custom map folder of GPS memory drive. All the navigation plan markings created in Google Earth is now transferred to the GPS. So अब आपका GPS तैयार है और आप एक्सपेडिशन के लिए तैयार हैं। जब आप एक्सपेडिशन कर रहे हैं, याद रखें 2-3 पॉइंट। मार्क ऑल द लोकेशंस विद एडिक्वेट डिटेल्स इन हैंडल्ड जीपीएस। दिस में टेक फ्यू मिनट्स, क्योंकि हैंडल्ड जीपीएस में टाइप करने के लिए वो एक बटन को 25 बार दबाना पड़ता है, ABCD वो सब करने के लिए, जैसे पुराने नोकिया फोन में होता था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जो बंदा एक्सपेडिशन का इंचार्ज है वो तो उतना काम करना ही पड़ेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी खड़ा होकर मार्किंग करना पड़ता है, जैसे फोटो खींचने वाला काम भी थोड़ा डिफिकल्ट है, उस हिसाब से ये प्लेस मार्किंग करना भी डिफिकल्ट है। और इधर उधर कुछ लिख देंगे, ABCD 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ लिख देंगे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या कहना चाहते थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम वहां पे जरूर स्पेंड करें। स्विच ऑफ जीपीएस एट कैंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आज से करीबन 12 साल पहले डिस्कवर किया था मैंने, जब हम पहली बार गुप्तकाल एक्सपीडिशन में निकल रहे थे। तो सडनली रात को हम जीपीएस ऑन करके सोए, सुबह उठे तो ऐसा लगा कि जीपीएस पकड़ के कोई दूसरा वैली में भाग गया था, क्योंकि वो प्लॉट करना चालू कर दिया, कुछ नदी के उस पार कुछ नदी के इस पार। और रात में पता नहीं सैटेलाइट लोगों का क्या होता है, अगर आप जीपीएस ऑफ नहीं करेंगे तो अपने आप कुछ पॉइंट्स प्लॉट करना चालू कर देता है। दिस इज समथिंग टू डू विद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। आई हैव नॉट येट अंडरस्टूड व्हाट इज इट, बट व्हाट आई फाउंड आउट इज दैट जैसे ही आप कैंप में पहुंचे जीपीएस को स्विच ऑफ कर दें। पहली बात, आप बैटरी बचाएंगे क्योंकि जीपीएस बहुत बैटरी खाता है, और दूसरी बात, ये डेटा एरर नहीं होगा कि आप कैंप में बैठे हैं लेकिन जीपीएस दिखा रहा है कि पता नहीं आप 5 किलोमीटर घूम के आ गए, तो वो सब काम नहीं होगा, वो भी रात का 12 बजे। so those errors should be avoided by switching off the GPS. Save trip data every day on GPS, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर जीपीएस की एक मेमोरी लिमिट होती है, उसके बाद वो पुराना डेटा इरेज करके फिर नया डेटा सेव करना चालू कर देता है जो उसकी करंट मेमोरी में होती है। तो इसलिए डेली ट्रिप डेटा अगर आप सेव करें तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि डे वाइज डेटा जब आप बाद में वापस आएंगे घर तो वो हाउसकीपिंग, डेटा हाउसकीपिंग में मदद करता है। पावर बैकअप ऑन जीपीएस, जीपीएस में प्रेफरेबली ड्यूरासेल यूज करें, नहीं तो 3000 mAh प्लस का रिचार्जेबल बैटरी यूज करें। अदरवाइज इट इज अ वेरी सैड थिंग दैट आप सुबह नया बैटरी लोड करके चले और दिन को शाम को 6 बजे तक आपका रूट चला, लेकिन दिन के 3 बजे आपके बैटरी खत्म हो गए। सो आफ्टर डूइंग ऑल दैट लेबर ऑल्सो यू विल नॉट गेट योर रूट डेटा ऑन द जीपीएस। सो दैट इज व्हाई प्रेफरेबल 3000 mAh से ज्यादा का रिचार्जेबल बैटरी होना चाहिए या फिर ड्यूरासेल का बैटरी होना चाहिए। Printed map gives a large perspective of the area easily and helps plan the day better. Should always supplement the GPS map data. क्योंकि मैंने आपको बताया जीपीएस का स्क्रीन बहुत छोटा होता है, 4 इंची का होता है, बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। हमारे जैसे आदमी जो बुढ़े हो रहे हैं उनको वैसे नहीं दिखता बिना चश्मे का। तो इसलिए एक बड़ा मैप प्रिंट आउट अगर सामने हो तो अच्छा है। सुबह सुबह जब आप रूट प्लानिंग कर रहे हो तो पूरा एरिया दिखता है। So always get into a practice of taking day-wise printed map. Post-expedition wrap-up: transfer the GPS data to Google Earth using GPS software. जैसे कि correct and adjust uploaded actual data for any errors or spelling mistakes. तो spelling mistakes normally हमारा जब हम GPS में actual route plot कर रहे हैं, तो जगह पे खड़े होके जब waypoint mark कर रहे हैं तो टाइम नहीं होता है, और नोकिया वाला सिस्टम है उसका कीबोर्ड में, तो इसलिए कुछ इधर उधर का गलत चलत भी डल जाता है, तो उसको ठीक करना होता है। मर्ज मल्टीपल रूट्स इनटू वन इफ रिक्वायर्ड. Save the final navigational data indicating plan and actual separately, so that
अगले बार जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ मैंने गलती किया था. So this we always follow, that what was our planned route and what was our actual route. Thankfully, normally our plan and actual has so far been fairly accurate, not very far away, except for one or two very difficult places. So that, and finally the map resources. Probably if the session is getting recorded, then you can refer to this later on also. तो जो ओवरऑल कॉन्टूर मैप वाला लेयर था, उसका भी मैंने डिटेल यहाँ पे दिया है, गूगल मैप ओवरलेस बोल के जो है. उस लिंक में अगर आप जाएंगे तो आपको अपना गूगल वाला अकाउंट के साथ साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा और अपना गूगल अर्थ में लोड कर सकते हैं. उसको पहले डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करना है, दैट्स इट, फिर वो गूगल अर्थ में लोड हो जाता है. जो मैं पूरा कॉन्टूर मैप दिखा रहा था कि जो पूरे दुनिया का ऊपर कॉन्टूर मैप चढ़ा रहा था, दैट इज अवेलेबल एट दैट प्लेस. पिक्चर स्टिचिंग सॉफ्टवेयर हगिन जो मैंने आपको दिखाया, उसका भी सोर्स दे रखा है, उत्तराखंड स्पेसिफिक मैप. सो आई थिंक दिस पेज शुड हेल्प यू. ऑल द वेबसाइट एड्रेसेस आर गिवन. मैप कहाँ से डाउनलोड करना है, वो उत्तराखंड का स्पेसिफिक मैप कहाँ है, नेपाल स्पेसिफिक मैप कहाँ है, किन्नौर कश्मीर स्पेसिफिक मैप्स कहाँ है, वो सारे उधर ही मिलेंगे गूगल. सो आई थिंक दिस पेज शुड हेल्प यू टू गेट ऑल द थिंग्स दैट यू सॉ इन माई गूगल अर्थ स्क्रीन. ये सब डाउनलोड करेंगे तो आपका स्क्रीन में भी दिखेगा. रिसर्च रिसोर्सेस जहां से हमारा सारा एक्सपेडिशन प्लानिंग के आइडियाज निकलते हैं, उसके लिए दिस हैव बीन माय टू मेजर रिसोर्सेस फॉर द लास्ट 15 years, बिकॉज माय एक्सपेडिशन वर्क स्टार्टेड समटाइम अराउंड 2006-2005. सो उस दिन से लेकर के आज तक आई हैव बीन फॉलोइंग these two websites where you get a lot of books by British explorers, very famous one and not so famous ones. मतलब ये जैसे फ्रैंक स्माइथ वगैरह का तो पूरा मतलब कलेक्शन आपको मिलेगा वहाँ पे. बट समवेयर यू विल आल्सो गेट, यू आल्सो नीड टू गेट इनटू the geological survey journal, the geography, the geographic journal, Royal Geographic Journal, because 1800 से लेकर mid 90s 1900s तक many of these journals carry a lot of these interesting articles. मतलब 1807 में वेब एंड रैपर का, 1817 में वेब एंड 1807 में वेब एंड रैपर का ट्रैवल तक का डिटेल आपको मिलता है. So you get to understand a lot of old places by books that were written about 200 years back by many of these British explorers. So that's about it, guys. I think with that I come to the end of my presentation. Hopefully we covered all the 8 steps and we discussed the map resources, etc. Time plan, I think we are doing more or less well. So any questions or answers, or otherwise we can wrap up? Yeah, so thanks a lot, Ashutosh. I think very, very well done, beautifully covered. And as I had just now given in the chat also, that anybody who has questions can just write a question and your name, so that we can ask you one by one to ask your question. I have given that thing. Oh, I'm getting to see the chat window just now. Yeah, okay. So you were projecting your screen, so obviously you couldn't see anything. But anyway, so this प्रश्न तो कुछ है नहीं सर. Question, I think nobody has given any questions so far. I don't see. Although people are saying thank you Ashutosh ji and all that, but abhi tak question nahi aaya hai. I think it was actually, the session was so good that there is no question you asked. It could mean 2 things actually. One is that it was so good that nobody had any question. The second was that it was fantastic that everybody has understood everything. Okay. So somebody is asking this question that in case there is somebody is asking a question regarding GPS, is saying which model should we buy? Sir, I always go for the Garmin GPS map series. The first one I bought was GPS Map 60.
उसके बाद 62S आया, उसके बाद 64S आया. So GPS map 64S, that is the model that I carry. It looks like a cell phone, मोटा सा पुराना मोटरोला सेल फोन टाइप का दिखता है, बट उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है. It has got a interesting antenna which is which works very well. So GPS map 64S Garmin model is what I use, and I vouch for it. It has been with me for the last 12 years, that single model. But E-Trex वगैरह, somebody asked you about need E-Trex, is it E-Trex 30? should be good because basic Garmin technology basic है, और 64S series का मुझे खाली जो अच्छा लगता है it is its reception ability, especially in deep valley areas जहाँ पे बड़ा tall mountain एकदम close side में है, तो वहाँ पे typically थोड़ा signal का issue आता है, जिसमें कि 64S does well. But I'm quite sure E-Trex basic facility हर एक में होगा, वो custom map का folder हर एक में होगा, और cost of Garmin GPS 64S, I think this should be anywhere between 20 to 25,000. Round about that, मतलब 17-18 से लेकर के 22-23 के अंदर में मिल सकता है. बट काफी स्टर्डी आइटम है, और खरीदने के बाद उसके स्क्रीन के ऊपर एक कवर जरूर लगा लें, वो स्क्रीन खराब हो जाता है नहीं तो. River crossing big issue also, how to negotiate. So yeah. just let me ask, I'm seeing the questions actually while you were talking. So somebody asked whether this session will be available later on YouTube. So the answer is that yes, it will be. We will try to make it available, but you never know about technology. You know, once we record this, whether it gets fully recorded or half recorded, we don't know as of now. But certainly we'll try. We'll try to make sure that the whole thing is available. And of course, you know, the program was so good. I mean, that I think a lot of people would go back and look at the YouTube, pause it, and then actually do it. You know, the overlay, etc. I think that will need some amount of doing before they can get the hang of it. So the other question. We can do a question answer if people are interested in really trying this out. I really want that everybody who wants to, first of all, a lot more people should get into exploratory expedition is my feeling, my personal feeling. Second, in order to get to those kind of expeditions, there needs to be good preparation. You cannot downplay that at all, because you are against the mountain and is like a million times more powerful than you are. So we would like that everybody gets updated with this technology. A lot of our friends from abroad also do not use that level of technology which is publicly available. So anybody who is along with us and part of this community must get into that level of usage, just to make sure that you are safe and you are not planning bad, and you are able to foresee to the extent possible the objective dangers that are there on the route. तो अगर बाद में आपको जरूरत होता है for any doubts and clarifications, not that I am a pandit, but maybe doubts will allow me to learn more. That is the hope. So we can have a question answer session. लोग practice करें, कहीं पे दिक्कत आएगा तो करेंगे, क्या दिक्कत? So I think we will have Ashutosh, we'll have a follow-up session of this because it's so interesting. I think we'll do it after a month or so. Once people have gone and practiced a little bit on Google Earth, then we will have a follow-up session. Meanwhile, there's a question. Somebody is asking whether we can get the defense series 1:20,000 map or not. You answer that. I know that is really my question, but the answer is no, you cannot get it. But I think what is available on Google Earth is very good. And if you know, like Ashutosh has shown, it is much better than any kind of real physical map. So one should just move to Google Earth as far as all your map and navigational planning is concerned. Somebody is also asking the cost of GPS Garmin 64S. I don't know. Maybe you should Google this. You know, this is a good question. You just go to Google and Google will have all the answers. In fact, if you're going to the US, you probably can get a better deal. US में थोड़ा सस्ता मिल जाता है. जबकि इंडिया में they have got dealership उनका है इंडिया में, but US costs are lesser, is my experience. Then somebody is asking about traditional
way to pathfind in high altitude treks. So I don't know if you have an answer for this. No, there is an answer for this. That yes, I mentioned as the first point कि expedition का concept clear होना चाहिए. Expedition के बारे में जितना जानकारी हासिल कर सको पहले मैप के साथ बैठने से पहले वो आप पहले करिए. So that is where discussions with traditional local villagers and shepherds comes easy. मतलब पहले तो शेफर्ड से बात करके ये पता चलेगा ना भाई उधर से रूट है. जब वो बोलेगा कि उधर से रूट है, फिर मैं सैटेलाइट पिक्चर लेकर देखता हूँ कि साला रूट है कि नहीं. So those things happen. It has to be a constant interchange कि local बंदे से आपको क्या पता चल रहा है और टेक्नोलॉजी आपको क्या दिखा रही है. So no, उसमें कोई दो राय नहीं है कि local shepherd many a times provides lot of important information. मतलब मेरा कीर्ति वाली एक्सपीरियंस तो यही कहता है. मतलब वो शेफर्ड मेरे साथ नहीं होता तो रास्ता कैसे ढूंढता मेरे को समझ नहीं आ रहा है आज तक. Sure. Ultimately, I think if there is a local information available, there's nothing like it. And all these have to be complemented with each other. I think you just cannot depend entirely on the map. Some local information, people who have gone there. I think that is a very serious input that one should take. So there is another question. If it is do we need georeferencing of topo sheet map? Sachin Pandey is asking this question. I don't know, Sachin, if you want to clarify what you are. Yeah. Sachin, we just now discussed a method of roughly georeferencing topo sheet map of SOI. It is a jugaad. Basically, what the session that we went through is a jugaad. Otherwise, you get direct maps which have got that data of the coordinate fed into it. So आप जैसे लोड करते हो सीधा जाकर के जगह पे चिपक जाता है. तो यहाँ पे तो हमने थोड़ा राउंड अबाउट जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी यूज किया कि पहले मैप को काटा, फिर उसके सारे कोऑर्डिनेट्स फीड किए और फिर वो मैप जाके वहां पे चिपका. जियो रेफरेंस्ड फाइल विल ऑलरेडी हैव दैट डेटा, सो इट इज इजी. And there was this good friend of ours called Satya, who very sadly we lost a few years back in some expedition in Himachal. Wonderful guy. Satya से मैंने एक एडिशनल चीज सीखी थी कि if you have got a large map, how can you very easily transfer it into a GPS which will provide a zoomable ability. मतलब उसमें एक के बाद एक 3 लेयर ऑफ मैप स्टोर होगा जीपीएस के अंदर. तो जैसे आप जूम करोगे तो 500 मीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर वाला मैप भी आ जाएगा आपके सामने. सो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू आर जूमिंग इनटू गूगल अर्थ. So Satya was the person who taught me that you can use a program called Map Tiler. मतलब इतना बड़ा मैप आपने ले लिया और मैप टाइलर प्रोग्राम को बोल दिया कि इसको 99 मैप टाइल्स में डिवाइड कर दे, वो कर देगा. वो उसके लिए मैं 2 दिन लगाता था अकेले बैठ के. तो पता चला कि सॉफ्टवेयर है, उसको काट छाट के एकदम 100 पीसेस कर देता है, जिसको आप डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर दो जीपीएस फोल्डर में, तो आपका जीपीएस जूमेबल गूगल अर्थ बन गया. So those things I think we will keep for a follow-up question answer and advanced session, so to say. Ki how can you build the same Google Earth in a zoomable fashion into the machine? So a lot of people have, Ashutosh, thank you for a wonderful session. And I think one question that Debabrata Mukherjee is asking is that do you want to add any disclaimer? So. Oh yes, of course I will add the disclaimer that this helps you to guide you to plot a expedition route. But because there is a 3 arc-second level of resolution in the digital elevation data में 10 से 11 मीटर तक का एरर आ जाता है. So as a result क्या होता है कि रिज टॉप के ऊपर अगर आप रूट प्लान कर रहे हैं तो बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि रिजेस का टॉप में विड्थ ही छोटा है और मतलब उसके ऊपर एक पीक निकला हुआ है, वो दिखेगा ही नहीं गूगल अर्थ का इमेज, बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द एलिवेशन डेटा. So such sharp places Google data fails. It will give you a good waypoint कि spot बता देगा, but route plot करने के लिए sufficient information वहाँ पे नहीं होता है. Contour map भी लोड करके देखेंगे तो भी वो information नहीं होता है. और ये हम in couple of expeditions we have discovered this the hard way कि आप रिज पे चढ़ गए और पीक पहुंचने वाले हैं, आपको तो मैप में सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, सडनली एक बड़ा सा गड्ढा आ गया, बड़ा सा एक पिनाकल आ गया जो कि मैप में था ही नहीं. And it is all, and the pinnacle is say what 4 meters or 5 meters, but it's a bloody pinnacle and you can't just climb and cross over.
So yes, disclaimer for Devu is that yes, for very high altitude and very tricky areas like ridge tops, this may not exactly help. But mostly about 90% of the cases for expedition planning, it comes very good. Like I said, if we hold a next session, we can discuss these two aspects. One, how can we exactly transfer a Google kind of experience to GPS? It requires a lot more effort, obviously. It requires you to create a lot more map tiles. And the second is, how do we track the current terrain condition using Earth imagery websites? For example, the NASA takes the photograph of Earth every day. Every single day in the year, it takes the photograph. And all that data comes from the International Space Station. So how do I use that NASA imagery, which is not Google Earth imagery? NASA imagery comes in a separate site. तो नासा इमेजरी को यूज करके हम लोग कैसे प्लान करते हैं कि जो टारगेटेड कैंप साइट है वहां पे बर्फ पड़ गया कि नहीं पड़ गया. थोड़ा एरर रहता है, बट ब्रॉडली इट टेल्स यू रूट क्लियर है कि नहीं है, कहां तक बर्फ पड़ा है. ये सब डेटा एटलीस्ट आईसी और स्नोई टेरेन के ऊपर काफी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है थ्रू द नासा USDIS वेबसाइट. So they have a website called Earth Observation System, so which gives that data. Nowadays, of course, you are getting Planet Plus और ऐसा करके 3-4 और वेबसाइट निकले हैं जो कि करंट इमेजरी दे सकते हैं, बट उसके लिए डॉलर खर्चा करना पड़ता है. तो अगर डॉलर खर्चा करोगे तो आपको कल का फोटो मिल सकता है विद वेरी हाई रेजोल्यूशन. So those facilities were not there 5 years back, but they are coming in now. So okay, very nice. The other question which was coming up was that there are some people who obviously want to ask you some other questions or keep in touch with you. So would you like us to share your email ID? Then we can do that. yeah. So I'll share in a few minutes. I'll share the your email ID here so that people can write to you. Meanwhile, we have another question that is, can we prepare our own? This is from Satyajit. Can we prepare our own imagery of remote area using drones? Is it legal? Imagery with drones, I don't think is legal because you have to take permission. यार हमको नेलोंग वेलोंग जाने के लिए military intelligence तक कागज पहुंच जाता है. Yeah. Yeah. So let's. I agree with you. Let's not try any stunts like this, because it is always better to get all necessary permissions. Certainly drones, etc. And all our Himalayan regions are in the border area, so it's good not to try any stunts. Let us keep our activity to climbing and trekking. And if it is unless it is something life-threatening, let's not try these things which will get us into trouble unnecessarily. Yeah, frankly speaking, by using drone, I will probably not get as much of technical detail that I get through the Google Earth system, because things like distances, things like elevation profile, because ultimately a drone will give me what? It will give me a 2D picture. That 2D picture, to a reasonable extent, I will get from a satellite imagery also. तो ड्रोन अगर मैं यूज करूंगा आज के दिन में, तो मेरा दिल कहता है कि यार वो कल का रूट ठीक है कि नहीं वो चेक करा. वो सब काम के लिए मेरे को लगता है उसका यूटिलिटी बहुत बढ़िया है कि भैया पास के उस साइड में क्या है वो देखा. ये सब काम के लिए शायद वो अच्छा वो देगा. बट देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई ऑल्टीट्यूड 6000 मीटर प्लस वगैरह में ड्रोन काम करता है नहीं करता है, वो भी कहानी है. उसका पावर बैकअप कितना है. So it's an additional technical complexity. And for mapping purpose, I don't think the drone will give me too much more advantage compared to what I already get as net from the net. Okay, that's interesting. So, but. So I want to add to ask you something, Devu. Yeah, Devu. Yes, Devu. Yeah. Go ahead. Yeah, so it's that's you added the disclaimer. That's nice, but just what you were talking about, the drone and that one. That's what I want to add. That one. That is, that even after mapping all this map and all that, but with the weather condition, as we are not getting that NASA imagery or the Planet Earth imagery daily, so it often happens, especially during expedition, etc., where the terrain is much more, the gradient is higher.
So there could be a big avalanche on the crevice is open or something like that. So we have always that problem. So always has to be very, very careful about or get ready for this kind of changes in the, even with the map we make that way. One. And so drone helps you in that way, in a way, perhaps. But drone is not permitted though, but nowadays everybody using, I think even your photographic team use that drone for good, cinema shots or something like that. So that's the thing. So drone is a way, it's good to have that maybe to actual condition to know, but it's not permitted. That's the main thing. Yeah. Yeah, But रेकी के लिए तो हनुमान टाइप का चीज है. सही है. Oh yeah. But that is the thing. But we have to be ready always for that ready for the unknown and the things. All those things very much. Even after getting a good map, but of course the Google Earth videos. And I once again thank you very much for a fantastic session. Thank you. Thank you, Debu. Thanks. आपसे भी काफी सीखा यार. Debu was one of the first to actually use Google Earth to find out the Panpatia thing. Yeah. Debu is, I think, one of the greatest users of, and actually he has used Google Earth for many things, many interesting things. Which I don't think this is the time to talk about it, but at some point we'll talk about what Debu has used Google Earth for. Right. Meanwhile, there's a question from Devashish Acharya, and he is saying that during the descent, when fully loaded, so I mean carrying a lot of load, what is the safe percentage in elevation profile? Probably he's asking about the slope that you should use while descending. This is I think interesting question, but it all depends on, if you ask me, that I don't think that there is a standard safe percentage. I mean, one has to look at whether you're, what is the terrain, whether it is, there is snow, there is ice, it is rock, whether you have got ropes, whether you don't have ropes. So I think many things have to be kept in mind when you are doing this kind of a descent. But ओवरऑल रूल जैसे हमको गाड़ी चलाते हुए सिखाते हैं ना कि बॉस घाट रोड चढ़ते हुए जो गियर लगता है उतरते हुए भी वही गियर लगता है. That's yeah, exactly. So that's a very interesting observation. Correct. So Avijit Basu also asking about any cost-cutting measures for exploratory expedition, because an exploratory expedition is very expensive. So yes, if you have got any good tips for cutting costs, because I don't know, I don't have any costs. Anything that I would suggest will always be very expensive. See, yeah, देखो, when you are doing exploratory expedition, the objective danger and uncertainties are comparatively higher, in my opinion, depending on the terrain that you're going into. Uncertainties at least. So resources plan जो आपको करने होते हैं, उसको positive side में लेकर के चलना होता है. Because in a planned expedition जहाँ पे सारे लोग जाते हैं, I have got many other opportunities कि मान लीजिए अगर खाना खत्म हो गया तो खाना मिल जाएगा, वहाँ पे दुकान है, ये है वो है. Exploratory expedition में ये सब opportunity आपके पास है नहीं. Plus you have got weather as a big factor, and it can just come in any time and take 2 days off your expedition. So I would want you to err on the safe side, and err on the safe side in the exploratory expedition is more resources or optimal resources, and that means money. But बहुत मतलब तुम इधर उधर पैसा बर्बाद नहीं करने का, बट खाना पीना और रिसोर्सेस और टेक्निकल इक्विपमेंट में तो आप कम नहीं कर सकते ना बॉस. और कॉस्ट अगर हो रहा है तो आपके नंबर ऑफ डेज के लिए कॉस्ट बढ़ेगा. और एक्सप्लोरेटरी एक्सपेडिशन में बिल्कुल आप टोक बजा के बोलोगे 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, नहीं होता है भाई. तो प्लस 2 days 3 days लेके चलना पड़ता है. सो आई थिंक you have to find the optimum balance. It doesn't have to be too expensive, but at the same time it cannot be a cheap trek, so to say. ठीक है. So I think that's overall we are almost out of time. So we had very good questions also, and a lot of participation. And I think it's time that we wrap up the session. But we will look forward, and I'll reach out to you separately, Ashutosh, for some time. Maybe in a month's time we'll do a
follow-up session over here. Meanwhile, I'll request everybody to go and download Google Earth or use the online version, whatever you want to use, and get familiar with it so that next time when we come around, we will have some really good questions to ask, and we'll go at an advanced level for this, because I think this is very important. This is a very important skill that we all need to learn. But thanks to all for joining. Thank you, Ashutosh, for the lovely session. And yeah, thank you, everyone. Goodbye, and see you again soon. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, sir.